हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल बेराम काजी बैठा हुआ है और हम आपकी स्क्रीनों पे वापस आ चुके हैं टू डिस्कस द T20 सीरीज एंड प्रीव्यू द ODI सीरीज। लेकिन उस सब पे जाने से पहले बेराम, इंडिया women won the World Cup yesterday. Yeah, dude, what a phenomenal achievement. The way they came back into this tournament after losing back-to-back games. Yeah. 3 on the bounce हारे थे, बल्कि सारी तलवारें निकल आई थी. हाँ बोरिया बिस्तर भी बांधने की वक्त आ चुके थे. अब आए हैं बोरिया बिस्तर बांधने के अब वक्त. किसी और का वक्त आ चुका है. Yeah, and I mean, if you want to catch more detailed analyses on that game and that World Cup, तो स्लॉग स्वीपर से भी जा सकते हो, गुड एरिया से भी जा सकते हो. अनफॉर्चुनेटली हमारा बैंडविड्थ का इशू था बहुत ज्यादा. वी वुड हैव लव्ड टू कवर दिस वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप इन डिटेल. अभी भी है, देखो हमें कल आ जाना चाहिए था आपकी स्क्रीनों पे, लेकिन नहीं आ सके. नहीं, वो रिसोर्सेज की और बैंडविड्थ की थोड़े इश्यूज थे. बट कंग्रेचुलेशंस टू ऑल इंडियन फैंस एंड व्यूअर्स एंड लिसनर्स. वेल प्लेड. Yeah, very well played, much deserved. First piece of silverware in women's cricket in when it comes to ICC trophies, and that too in ODI World Cup at home. तो इससे ज्यादा खुशाइन बात क्या हो सकती है? It could be an inflection point. Should be. Yeah, women's cricket could explode here on. Should, at least in the subcontinent. Yes, absolutely. And you know, it's a big deal because हमारी societies के अंदर दुनिया से ज्यादा पेट्रियार्की है, ज्यादा मिसोजिनी है. बहुत ज्यादा. So this will now inspire generations to come, especially young girls, to pick up a cricket bat or ball. Yeah. And yeah, I mean, heroes were made yesterday. So congratulations to everyone. और हमने बड़ा enjoy किया Women's ODI World Cup. Had a lot of fun. Yeah, but we're here to talk about Pakistan versus South Africa. T20 series Pakistan 2-1 जीत गया. Yeah, तुम्हारी prediction थी. Yeah, मेरी prediction थी. बाकी to all Pakistan fans as well, congratulations on winning the series 2-1. T20 है इसके अंदर, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो रही है, मगर अभी भी बहुत ज्यादा कैवियाट्स हैं, बहुत ज्यादा गैप्स हैं, बहुत ज्यादा गैप्स. बथेरों होता है भाई. बथेरों कैवियाट्स और गैप्स हैं. और आज सब चीजों के बारे में तफसील से बात होगी. दिस इज गोइंग टू बी अ मैराथन पॉडकास्ट बिकॉज वी आर रिव्यूइंग द एंटायर T20I सीरीज and reviewing the entire ODI series. खैर वो दैट सेगमेंट माइट बी अ बिट शॉर्टर, significantly shorter. significantly. But हाँ यार, I suppose Saadi, Pakistan's T20I side, they will take a lot of confidence from this series win into the try series. ठीक है, जो T20I वाली होने लगी है between Pakistan, Sri Lanka and Zimbabwe. But you know, they just need to be a bit more brave. Timid. मैं तो पहले बोल रहा हूँ, timid. They just don't know how to take tough decisions. Tough भी नहीं है यहाँ पे. You just need to try out all of your resources. It is, मतलब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, पाकिस्तान की सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो टफ डिसीजन ही है बेनाम. ये ना हमेशा they always tend to play it safe because they're more concerned with the ultimate score line. ठीक है, आप 2-1 जीत गए हो. Fans are more concerned with the ultimate score line and the media as well. But यार 10 साल बाद who's going to remember that you defeated South Africa at home in a T20I series? उस दिन ब्रॉडकास्ट पे दिखा रहे थे हेड टू हेड बिटवीन पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका, और मुझे कुछ नहीं याद था कि कौन कितनी लीड में. आपको ODI सीरीज फिर याद रह जाती थी. हाँ, वो भी खास अब याद नहीं रहती. हाँ, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वाली रहेगी क्योंकि वो बिग अचीवमेंट्स थी पाकिस्तान के लिए. हाँ, when you win an ODI series away from home, that tends to stick in the memory a bit longer, and that's more prominent. But dude, like white ball bilateral cricket, the entire context नहीं है ना. हाँ, context तो है ही नहीं खैर, but the entire cricketing world, all top cricketing nations, they don't take these seriously, man. You look at South Africa, उनका स्क्वाड देख लो और उनकी चेंजेस देख लो. सीरीज डिसाइडर में they made 3 changes. लुंगी एंड गीडी और नैंड्रे बर्गर को बिठा दिया उन्होंने कि हम टेस्ट करें बाकी बॉलर्स. हाँ, they wanted to ensure कि सिमिलानी को गेम टाइम मिल जाए, लिजाद विलियम्स को भी दूसरा मैच मिल जाए. ऑटनील बार्टमैन who had shat the bed a day earlier still played. ठीक है, they didn't care about that, and that's what good teams do. They use or try out almost all of their resources. सिर्फ Nkaba Peter नहीं खेला. अच्छा नहीं निकला. Nkaba Peter अब निकला. सिर्फ वो नहीं खेला. हाँ, everyone else got a game. आप जहाँ पे अगर आप पाकिस्तान को देखो तो यार they kept trying to rotate but not smartly enough. As in, Shaheen played 2 games, Naseem played 2 games, and Salman Mirza played 2 games. Abrar played 2 games, Usman Tariq got 1 game. तो ये rotation थी हमारी बस. Abdul Samad and Wasim Jr. did not get a single game. In fact, Waz Jr. has not featured in Pakistan's T20I side in the entire Hassan era. हाँ, जब से माइक हैसन आए, Waz Jr. स्क्वाड में रहा है लेकिन गेम नहीं मिली. स्क्वाड में पिछले 3 आपकी सीरीज थी, इंक्लूडिंग द एशिया कप. Tri series Asia Cup. Starts with the Tri series, then Asia Cup, and now the South Africa series. कुल मिला के these are 15 games in total, and Waz Jr. has not featured once. I don't get it. It boils my blood. It does. Waz Jr. का मसला नहीं है, उस रोल का मसला. हाँ. When you took out Haris Rauf,
वी ऑल थॉट कि उस रोल को पूरा करता है वैस जूनियर, बिल्कुल, या उस तरह का कोई भी बॉलर और स्क्वाड में होता। हाँ, अगर अब्बास अफरीदी स्क्वाड में होता तो दैट वुड मेड लॉट ऑफ सेंस। या जो भी अब्बास अफरीदी हो, वैस जूनियर हो, कोई भी मिडिल या डेथ ओवर में बॉलिंग करवा सके वो बॉलर हो। एक ही बॉलर था, उसको एक गेम नहीं मिली। I knew कि इसको कम खिलाएंगे, मुझे लगा एक मैच मिल जाएगा, एक तो मिल ही जाएगा। आई थॉट 0, I did not think. Look, he was your only seamer in this current T20I squad who could bowl through the middle and at the death. हारिस राउफ अब नहीं था, ऑब्वियस था कि यार एक आप न्यू बॉल बॉलर खिलाओ और एक वैस जूनियर खिलाओ। वैस जूनियर को बल्कि मैं तो तीनों मैच खिलाता, उन्होंने एक भी नहीं दिया। बार बार यू कीप सिलेक्टिंग 2 न्यू बॉल बॉलर्स, शाहीन नसीम, सलमान मिर्जा एंड शाहीन सलमान मिर्जा। और सलमान मिर्जा, kudos to him, he should have been player of the series, was really good. yeah. But you know, Shaheen और सलमान मिर्जा ठीक है, I'm not saying they can't work together, but they're both new ball bowlers, they're both left arm quicks. You need to make the balance make sense. शाहीन को अगर एक गेम मिल जाती तो कोई मसला तो ना होता। हाँ, कोई दिक्कत ही ना होती। And he plays a pivotal role in that series decider, but the point is that you do not care about the series decider. You shouldn't. You should forget about these bilateral white ball series results, खास तौर पे T20Is, ODIs में फिर थोड़ा चलो कम खेलती है वो फॉर्मेट दुनिया, और होम पे तो आप बंदे ट्राई करते हुए। अब साथ वाली बात है यार, इन द सीरीज डिसाइडर साउथ अफ्रीका बेंच बोथ ऑफ नांड्रे बर्गर एंड लुंगिंग की, जो दो उनके वाकई फ्रंट लाइन बॉलर्स थे इस स्क्वाड में, हाँ, जो कि ऑलरेडी उनका was missing around 6 to 7 first team players. उनका भी सीरीज डिसाइडर था. They were also playing to win the series, but they were like, okay, in the grand scheme of things, this does not matter. We should try everyone out because that's what good teams do ultimately, Sadi. You don't Finalists of the T20 World Cup 2024. You don't put all of your eggs in the bilateral T20I basket. You prepare for T20 World Cups. Which is just 4 months away now. हाँ, अब तो ज्यादा दूरी नहीं है. 4 months भी नहीं है, 3. 3.5. Yeah, 3.5 भी नहीं, 3. November. Start of Feb. November, December, Jan. 3 months. Yeah. That's like nothing. 3 महीने तो वैसे ही गुजर जाते हैं यार. ठीक है. हमारे भी गुजर ही जाएंगे बहुत आगे. किरकुट आ रही है up until the end of November. पीछे भी बहुत किरकुट थी, बहुत ज्यादा. It's been quite exhausting. कल रात मैं 5 बजे डन हुआ हूँ यार. ये थोड़ा ज्यादा कर देते हैं. Yeah, I got done at 5 a.m. I'm here in front of you a few hours later. Right? But खैर, not complaining, really grateful, love what I do. वो वाला सीन नहीं. I think जब तक ये podcast आएगा 12 घंटे गुजर चुके होंगे. हाँ, तब तक तो गुजर ही चुके होंगे. But quite disappointed कि पाकिस्तान didn't try out their bench completely. And also Waz Junior वाली चीज़ पे तो यार मैं literally मेरा दिल चाहता है मैं सर मारूं किसी दीवार में. मतलब मैंने एक ट्वीट भी किया था कि it's the year 2032, Pakistan are playing a meaningless white ball game or T20I game or whatever, and Waz Junior is still warming the bench. Yeah. उसका करियर यही रहा है. He has warmed the bench throughout. Barely. बहुत कम ऐसे इंस्टेंसेस हैं जब वो रेगुलर उसको गेम टाइम मिला. 2022 T20 वर्ल्ड कप, वो जो एक टाइम आया था जो ओडीआईज बहुत खेल रहा था. 2022 में भी बाद में आया था, शुरू नहीं किया. पहले 1-2 मैच नहीं खेला था, उसके बाद आ गया था, फिर एंड तक खेला था. और फिर ऑल्सो आई रिमेंबर 2023 में भी सेम था. हाँ, 2023 में भी सेम था, एंड में आया था और अच्छा खेला था. He was our best bowler. और माइक हैसन ने तो खुद बोला था ये कि we are looking at him as a death bowler and you know reverse swing is key and this that the other. खैर वो उसने सलमान मिर्जा के बारे में भी बोला था. मैं तुम्हें बार-बार याद करवाता हूँ, उसने सलमान मिर्जा के बारे में भी ये बोला था. We look at him as a death bowler as well. हाँ, so खैर और भी यार चीजें हैं when it comes to timidness and playing it safe always and not testing yourself out entirely. Salman Ali Agha won all 3 tosses and elected to field each time. पहली 2 दफा ठीक है यार. रावलपिंडी में even though in hindsight he probably should have batted first, but उस टाइम पे मुझे भी यही लग रहा था कि you'd want to know what you're chasing. ठीक है, सही है, सीरीज ओपनर है, आप टॉस जीते हो, पिंडी है, आपने कर ली पहली बैटिंग, वो उल्टी पड़ गई. खैर है, आप टॉस की वजह से वो मैच नहीं हारे, आप बैटिंग की वजह से हारे हो. Should have been able to chase down. आप जो सारे वैसे T20s हार रहे हो वो बैटिंग की वजह से ज्यादा हार रहे हो. बिल्कुल. मेजर कैविएट तो ये because in Mike Hasson's tenure as head coach of Pakistan's white ball teams, the fielding has significantly improved. It has. ठीक है, कमाल. फुल मार्क्स ओवर देयर. ठीक है, लैप्सेस आते हैं बीच में, एक आधा तो हर एक के साथ हो जाता है. ओवरऑल अगर आप गेम को फोकस के साथ देखो ना, तो फील्डिंग हैज बीन मोर और लेस वेरी गुड. हाँ, मतलब कि they've been a good fielding team, जो कि कम ही हमें कहने को मिलता है पाकिस्तान टीम्स के बारे में. Really good fielding team. कैचेस एक आधे इधर उधर तो हर टीम से ड्रॉप हो जाते हैं यार, लेकिन
कंसिस्टेंटली जिस तरह ग्राउंड फील्डिंग हाँ. उनकी काम कर रही है, जिस तरह वो कैचेस पकड़े हैं, कूडोज है. Yeah, and I mean, he pinpointed this, Mike Hessen, that you have to be able to field properly, not Warna, you're not getting into my team. Exactly. If you're a club level fielder, you can't represent Pakistan, and I'm fine with that stance. और fielding significantly improve की है. Bowling has been great. Bowling has ठीक है? been really good. Batting ही आपको मरवाई रही है और tactics भी मरवा रही है. Tactics and हाँ, These two things. batting has been best poor. हाँ, अब देखो, चलो यार, आपने पहली bowling की पिंडी में ठीक है, you wanted to know what you are chasing. Your batting could not chase down 195 even though इस तरह की सरफेस थी कि हो सकता था. होना चाहिए था. आपकी बहुत बुरी परफॉर्मेंस होना चाहिए था. ठीक है, योर परफॉर्मेंस वाज कंप्लीटली नॉट अप टू द मार्क. देन यू कम टू द सेकंड T20. चलो यार ठीक है, आपने फिर से कर ली. यू आर 1-0 डाउन इन द सीरीज. यू न्यू यू विल कम लेटर. इट्स फाइन. आपने कहा सही है यार, हम फिर से बैटिंग फिर से चेस कर लेंगे. Come third T20 आए, the only reason why you opt to field first is because you don't want to risk it. You want to win. You want to ensure it that you win the series and you know आप scrutiny से बचो. यहाँ पे यार एक आपके पास ideal chance था, perfect opportunity to test yourselves, go and bat first despite the conditions and say कि ठीक है यार, हम घर पे खेल रहे हैं, आगे जाकर हमें इसका फायदा होगा. We haven't batted first in this entire series. That's what conventional wisdom suggests. पहले इसकी obsession थी बैट फर्स्ट के साथ, सलमान अली आगा की. तुम्हें याद है, हर सूरत में बैट फर्स्ट ही करता था. अब आकर यार मतलब you're just playing it so safe, you're so scared कि अब timidness. That's what Pakistan cricket is. Timidness is too kind a word. फट्टू हैं. Simple. फटती है इनकी. ठीक है, तो है. ये ब्रेव कॉल्स ले ही नहीं सकते क्योंकि इनको होता है कि यार मीडिया से बचना है, फैंस को खुश करना है, तो बस सीरीज जीतो भाई. यहां पे आकर जो आप प्ले सेफ करो ना, कल को T20 वर्ल्ड कप के अंदर थिंग्स वोंट गो योर वे एंड यू वुडंट हैव इनफ प्रैक्टिस इन यू. आपने अपने आप को तैयार इतना किया नहीं होगा. यू वुडंट हैव टेस्टेड योरसेल्फ टू दैट डिग्री दैट यू शुड बी टेस्टिंग योरसेल्फ, एंड दीज वाइट बॉल बायलैटरल T20s आर स्पेसिफिकली फॉर दैट. या तो होता है ना कि हर मैच के पॉइंट्स हैं और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं, और ये जिस तरह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में होता है. मुझे समझ आती. हाँ, क्योंकि इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप देयर आर नो डेड रबर्स. इन व्हाइट बॉल T20I स्पेसिफिकली एवरी गेम इज अ डेड रबर है. नो वन केयर्स. जब तक वो T20 वर्ल्ड कप नहीं जीतोगे ना, बाकी आप सारी सीरीज जीत जाओ, डजंट मैटर. आप सारी सीरीज हार के T20 वर्ल्ड कप जीत जाओगे, डज मैटर. बिल्कुल सिंपल सी बात है. साउथ अफ्रीका इज अ ग्रेट एग्जांपल बाय द वे. दे प्लेड द फाइनल. आई कैन नॉट रिमेंबर द लास्ट टाइम साउथ अफ्रीका फील्डेड अ फुल स्ट्रेंथ टीम इन व्हाइट बॉल क्रिकेट. वो हमेशा ये लोग कह रहे हैं ना कि सी टीम है भाई, यही लड़के खेलते आ रहे हैं बहुत देर से. बहुत देख लिया मैंने. जॉर्ज लिंडा हैज प्लेड फक डन. ठीक है, लिंडा है, रीजा है, कैप्टन जो था इस सीरीज में डोनोवन फरेरा has been with the side for a while. सारे इनके नए हैं. क्विंटन डिकॉक है एक जो वापस आया था, और वो ऑब्वियसली अब उसको ट्राई करना है उन्होंने कि वो उसको फर्स्ट टीम का पार्ट बनाना है उन्होंने, या नहीं. वो देखो, दे प्रायोरिटाइज टेस्ट क्रिकेट. दैट्स व्हाई यू डिडंट सी द लाइक्स ऑफ एडन मार्करम, ट्रिस्टन स्टब्स, रबाडा, यानसन भी नहीं था. देयर मस्ट बी अ फ्यू अदर्स. महाराज चलो ओडीआईज में ठीक है, वो होता है, बट T20 तो कम ही खेलता है. इस स्क्वाड इसमें नहीं है, बट देयर सारों को रेस्ट किया उन्होंने. सारों को रेस्ट किया कि इंडिया की सीरीज आ रही है उनकी आगे, बिकॉज दे आर प्रायोरिटाइजिंग टेस्ट क्रिकेट. उनको नहीं फिक्र व्हाइट बॉल गेम्स की, वो सिर्फ सीखते हैं. उधर ट्रेविस हेड को बाकी जो इंडिया के साथ T20s हो रहे हैं, उन्होंने कहा जाके शेफील्ड खेलो, एशेज आ रही. हेजलवुड को भी निकाल दिए. देखो ये होती हैं टीमें. Yeah, they don't care, man. They try to hedge their bets and manage their workloads, and they prepare for big events. Pakistan में यार, ये we've seen this movie before. This is not our first rodeo. No, not at all. Yeah. ये पूरी फिल्म क्या ट्रिलॉजी चल गई है अब तक तो. ट्रिलॉजी क्या, ये तो वो फुल यार सीजन चल पड़े हैं. फ्रेंड्स को बीट करने वाले हैं. ग्रेज एनाटॉमी को बीट करने वाले हैं जो अपने पता नहीं क्या 21वें सीजन में. सिम्पसंस ब्रो, फॉरगेट ग्रेज एनाटॉमी, सिम्पसंस. तो यार मतलब we have as Pakistan, or this includes the fans and the team and everyone, they have experienced this, that you know keep winning bilateral ODI and T20 series, but then come ICC events you've been shitting the bed, because आपका plan A sorted होता है. The minute something bad happens you have to go to contingency plans. कुछ होता ही नहीं. या और ये बाबर भी करता था. He would never bat first because he knew कि नहीं मैंने मैच जीतना है. ये वही mindset है, वही सोच है, and I have issues with this. I am surprised कि Mike Hessen is on board with this. थोड़ा सा मैं हूँ disappointed. बिल्कुल होना भी चाहिए. 2024 T20 वर्ल्ड कप मुझे याद है, यू रिकॉल 2 players into the squad. पता नहीं क्यों. नहीं उस टाइम पे मुझे वैसे सेंस लग रही थी. मुझे इमाद की तो सेंस अभी भी मैं कहता हूँ, आई वाज ऑन द बैंडवैगन. लेकिन अब हाइंडसाइट में अगर देखो तो क्यों पहले नहीं आए थे वो. हाँ, वर्ल्ड कप में क्यों आ रहे हैं, थोड़ा पहले क्यों नहीं उन्हें इंटीग्रेट किया गया.
2025 चैंपियंस ट्रॉफी देख ले यार, एक साइम अयूब गया, Yeah. पूरी स्क्वाड चेंज हो गया। अब 2023 ODI वर्ल्ड कप नसीम गया, नसीम गया, समझ नहीं आई समझ नहीं आई क्या करना। Yeah. चैंपियंस ट्रॉफी में एक चलो फिर फखर भी इंजर्ड हो गया, तो फिर तो बिल्कुल ही फारिग हो गया। बिल्कुल लेट गए। और समझ चलो नहीं आती क्यों नहीं, पहले से क्यों नहीं। मैं ये plan नहीं कह करना? रहा कि इंजरीज आपको हिट करें तो आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, होता ही है सबको, ऑब्वियसली ठीक किसी है, ना बट किसी लेवल पे होता है, लेकिन आपके प्लान्स तो शिफ्ट नहीं हो जाने चाहिए ना। पीछे लड़के तैयार बैठे होते हैं बिकॉज देव प्लेड दोज मीनिंगलेस व्हाइट बॉल सीरीज Yeah. एंड पाकिस्तान डजंट डू दैट, दे कीप पिकिंग प्लेयर्स एंड वेस्टिंग देम। सेलेक्ट होना तो यहाँ पे अब कोई वो भी नहीं है यार, देयर इज नो गारंटी कि अगर आप सेलेक्ट हुए आपको गेम टाइम मिलेगा। नहीं, और आप सिलेक्ट हुए हो, हु नोज अगली वाली सीरीज में वो बंदा हो ही ना स्क्वाड में। By the way, 2025 and T20s was Baz Jr.'s best year. He hasn't still played or featured in Mike Hessen's team. अब्दुल समद को क्यों सिलेक्ट करो जो आपको पता है कि आपने नहीं हिलना नवाज और राना फहूम से? हाँ, क्या फायदा? अब्बास अफरीदी तो प्लान्स में ही दूर तो वो तो है ही नहीं दूर तक, जो मुझे समझ नहीं आती। Someone who can whack the ball down the ground and on the pull very very well. and is more than a handy bowler यार। More than क्या, he has a terrific T20 record. Yeah. ठीक है, he can take middle overs wickets and he can perform at the depth. Yeah. Slower one उसकी killer है। किलर स्लोअर Yeah. वन, उसका पहले इशू ये होता था बहुत ज्यादा कोट खाता था। हाँ। अब उसने वो भी रेक्टिफाई कर लिया, बिल्कुल। उसकी इकोनॉमीज आर गुड। Much better than before. First, his novelty was just wicket-taking ability. And I would always fear कि यार when the wickets dry up, what happens Yeah. to Abbas Afridi? And then he fixed that. He became frugal, and he did feature for Pakistan in T20s, and now he's just sidelined. वो Hong Kong जा रहा है खेलने। वो भी वैज जूनियर को रिप्लेस किया था अब्बास अफरीदी ने, इफ यू रिमेंबर करेक्टली। बिल्कुल। इंजर्ड हो गया था वैज जूनियर, तो वरना- अब्बास अफरीदी को लाए थे। वरना नहीं आना था नहीं आ उसने, रहा था। ठीक है। और बताओ हांगकांग सिक्सेस भी यार इज समथिंग दैट वो रिटायरीज खेलते हैं। यहाँ पे बड़े यंग एक्साइटिंग स्क्वाड है, मैं ये नहीं बोलूंगा। हाँ, बट अब्बास अफरीदी इज लीडिंग दैट टीम यार, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। एक वो डीके और अश्विन आ रहे हैं इंडिया से, सोचो अब्बास अफरीदी मुग्गे में करियर, एक कमेंट्री कर रहा है, एक यूट्यूब पे बैठा हुआ है। मोहम्मद शहजाद है, साद मसूद है, हाँ। टैलेंटेड प्लेयर्स। आई वांट देम टू प्ले कम्पिटिटिव क्रिकेट। बिल्कुल इट्स एन एक्साइटिंग स्क्वाड, लेकिन सेंस नहीं बनती। नहीं, इवन इफ दे विन दैट, इफ दे आर प्लेइंग ओल्डीज, मां से ताकत भी था शायद, क्या था मां सदाकत 100% था। सो शुआ के T20 के प्लान्स में होना चाहिए। यू आर नॉट लुकिंग एट थिंग्स लॉन्ग टर्म, आप मैक्रो लेंस से किसी चीज को देख ही नहीं रहे। यू आर लुकिंग एट माइक्रो सीरीज, गेम्स, रिजल्ट्स। ठीक है, रिजल्ट्स मैटर टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट ऑनेस्टली ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, all of Pakistan's fan base would eventually be happier if you do well in an ICC tournament. Obviously. Yeah. अच्छा, यहाँ पे तो वैसे there's no winning with anyone, right? अगर हार जाओ तो आप B या C टीम से हार गए, अगर आप जीत गए हो तो सिर्फ आपने B या C टीम को हराया। ये है नैरेटिव, वैसे ही फ्लॉड है, जो कि होना नहीं चाहिए। I'm still saying that this is still like if they've won a series, they should be congratulated, Obviously. commended, and they But should should be happy with it as well. Ultimately, अगर आप सोचो, जरा गौर करो, तो सीरीज तो आपको बॉलिंग ने जिताई है। Yeah. You didn't even test your batting out properly. एक Nah. मैच में जब होना था टेस्ट, वहां पे फेल कर फेल गए। हो गए, और सेकंड और थर्ड में तो कोई टारगेट ही नौबत ही नहीं आई, हाँ। नौबत ही नहीं आई ना टेस्ट होने की। आपको पता था कि ड्यू आएगी बाद में, ठीक है। समटाइम्स यू गो यू नो अगेंस्ट कन्वेंशन एंड यू लाइक ओके ठीक है, हम ट्राई करते हैं इस पे डिफेंड करने की। कोई नहीं, ठीक है, हम कोशिश करेंगे, घर पे खेल रहे हैं, हम आगे की तैयारी करेंगे। और आके ये फिर ट्रांसपेरेंट होके लोगों के साथ शेयर करो, ये हम ट्राई करना चाह रहे हैं। तो ऑनेस्टली वो जो सारे तपे हुए बैठे होते हैं ना, वो ना तपे। Yeah. उनको पता हो कि ट्राई क्या कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले खुद बाय इन करना है टीम को, उसके बाद फिर आपने फैंस को लेके आना है उसके अंदर कि यार दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग। फैंस विल अंडरस्टैंड। They will. व्हाई वोंट दे? There's no reason not to. ओके यार, हमारा एम ये वाला टूर्नामेंट है, एशिया कप था जिस तरह पहले, T20 वर्ल्ड कप है, उसके लिए हमारा ये प्लान है यार। we're gonna try out new players, we're gonna try out new tactics, let's try. And we've been echoing this sentiment for a long time. Long We probably time. sound like broken records by now. जब से हमने शुरू किया। और पता, आप भी सरप्राइज्ड हो गए यार, पाकिस्तान सीरीज जीती और ये आकर फुल क्रिटिकल हो गए। देखो, ये तो हमारी नौकरी है। We'll say it as we see it, and we are really disappointed with all of this development. देखो, हम क्रिटिकल उनकी टैक्टिक्स और उस सारे उसके ऊपर हो रहे हैं, हम उनकी प्लेइंग पे नहीं हो रहे। सेकंड और थर्ड T20 में टेरिफिक बॉलिंग, अभी आएंगे उसके ऊपर। बिल्कुल। ग्रेट फील्डिंग एज वेल। Yes. बैटिंग ठीक है, जितना कर सकते थे उतना कर दिया, और उससे ज्यादा तो टेस्ट हुए नहीं आप। तो फिर क्या करना है यार? यू मेक अपने आप को ना, आपने कभी कभार इस तरह टेस्ट करना होता है खुद सिनेरियोज बना के कि यार अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे अगर हार भी है तो कोई मसला नहीं है, हम अगर पहले ड्यूई कंडीशंस में बॉल ट्राई करते हैं आज। बिल्कुल। हम आज स्पिन ट्रैक पे
सेकंड बैट करके देखते हैं, इस तरह की चीज है ना. Yeah, because this is where you learn. हाँ. ठीक है, you only take these meaningless white ball series as learnings for eventual ICC events. You want to go into those ICC events having covered all bases, tried absolutely everything, knowing कि if plan A fails, this is plan B, C, D, E, contingency plans आपके sorted होने चाहिए. इतना game time हर player के पास होना चाहिए squad में कि यार God forbid there is an injury. हाँ. There is no issue. Yeah. ठीक है, और at least there is good mitigation. Yes. कि ठीक है, it's a hit but we can हाँ. work around it. बट पाकिस्तान तो सिचुएशन में कभी होता ही नहीं है ना. पाकिस्तान का जब एक या अगर गलती से 2 प्लेयर इंजर हो जाए, जैसा फखर भी हो गया था साइम के साथ साथ, फिर तो खत्म है बिल्कुल, आपका टूर्नामेंट मुक गया. यू ऑलरेडी नो देव लॉस्ट. ठीक है, कभी सो बाबर ओपन कर रहा होगा, कभी पता नहीं क्या हो रहा होगा, सऊचुकील फर्स्ट ड्रॉप आ रहा होगा. खैर, कमिंग टू सम पॉजिटिव्स, पहले तो यार वंडरफुल क्राउड्स. माय गॉड, पिंडी एंड द गजाफर्स बैक टू द राफ्टर्स मैन. वो एक लड़ाई चल रही थी मजहर अरशद की बाकी पूरी दुनिया के साथ, where he said the last T20 I had a record crowd for Pakistan. अब पता नहीं वो सच है कि नहीं, कुछ लोग कह रहे थे 96 वाले फाइनल में ज्यादा था. अब पता नहीं तब स्टेडियम कुछ फर्क था या क्या था. आई एम नॉट नॉलेजेबल इनफ. लेकिन मॉडर्न टाइम्स में तो होगा. मॉडर्न टाइम्स में तो डेफिनेटली है. मॉडल टाउन बोल हाँ, मॉडल टाउन में भी डेफिनेटली है. या वो मैं कह रहा हूँ कि कोई 7वीं 8वीं PSL टीम्स में से एक मॉडल टाउन की ना हो, ये भी एक रिस्क है. ठीक है, जब 8 उनकी हैं तो फिर एक टीम से क्या करना है? Zone 6 will be pissed. माय गॉड, बहराम हम बहुत ज्यादा बोल जाते हैं. अच्छा हाँ, खैर anyway, loved that bit के पिंडी में तो खैर भरती हमेशा अवाम पूरा ग्राउंड. ठीक है, so that was a full house as well. But in that दोनों मैच, in that renovated Gazafers, full houses, as I said, crowd, like those stadia were packed to the rafters in these smoggy conditions. हाँ यार, बहुत खतरनाक किस्म की स्मॉग थी. बल्कि आज तो यार मैं आ रहा था ऑफिस, मुझे बाद वो अपने नजर ही नहीं आ रहे थे, बरगला हिल्स ही नजर नहीं आ रहे. पहाड़ नहीं नजर. बाय द वे E11 में दफ्तर है हमारा, मुंह पे है मरगला हिल्स, नहीं नजर आ रही थी. पूरी इतनी थिक लेयर ऑफ बस ब्राउन गंद नजर आ. या इट्स डर्ट. So yeah, smoggy conditions थी. हमें टीवी भी नजर आ रही थी. It was slightly hazy. जब उसने bird's eye view दिखाया पूरे गजाफर्स का, धुंध नहीं कहना चाहिए ऐसे, क्योंकि वो fog different होती है. गंद. हाँ. स्मॉगियां थी. And I suppose worked in Pakistan's favor. Yeah, I guess you never know, because South Africa wouldn't be used to that. Also, shout out to that crowd man, कि despite the smoggy conditions, they still made the trek. And वो क्या करेंगे? Yeah. उनके पास चॉइस नहीं है. एक चीज ये कर सकते कि मास्क पहना है. वो तो कोविड में यहाँ पे मसले चल रहे हैं. चलो यार, क्राउड्स फुल अपने पॉम्प में आए. दैट्स ऑलवेज अ गुड साइट. एंड T20 क्रिकेट के लिए हमेशा स्टेडियम भरी देती है पाकिस्तान, एटलीस्ट इन इंटरनेशनल क्रिकेट. अभी तो ODIs में भरेंगे ना, उस पे आना है. फैसलाबाद में तो और भी ज्यादा भर देना. बाय द वे, मुझे एक पॉइंट याद आ गया क्राउड से, जो कि एजाज भी काफी ज्यादा हमारा पाक पैशन का जो बॉय है, वो भी कह रहा था कि बहुत ज्यादा लोग जो है ना विदाउट टिकट सेंटर हुए. पैक पैशन, सॉरी मैं बिल्कुल वहीं पे था अभी तक. वो बहुत ज्यादा विदाउट टिकट सेंटर हुए हैं, और सिफारिशों की वजह से, इसलिए टिकट जिन्होंने ली हुई थी वो नहीं एंटर हो सकते. और लोग कहते हैं किसी को पुलिस में जानते हो. हाँ, एजाज को खुद मैसेजेस आए हैं कि पुलिस में किसी को जानते हो तो हमें अंदर करवा दो. इस तरह की चीजें हुई हैं. सो दैट्स पुअर. Poor. Yeah, and that should not be on. If someone has purchased a ticket, they have paid for that experience. क्या बकवास है. पता नहीं यार. पहले तो यहाँ पे वैसी, खैर उसका तो कुछ खास किया नहीं जा सकता. जो स्टेडियम में घुसते हुए टाइम लगता है आम आवाम को, वो तो आपको सिक्योरिटी मेजर्स तो लेने हैं. बट स्टिल यू कुड लुक टू स्ट्रीमलाइन दीज थिंग्स. टिकट के ऊपर आप लिख दो कि यार आप सर्टेन एक टाइम पे आ जाओ, विल ट्राई टू गेट एवरीवन इन ऑन टाइम. और वही बात है, if someone has purchased a ticket and they haven't been able to get into the stadium, they're not purchasing a ticket again. Never. Yeah, मैं खुद ना करूं. भरो फ्री फिर स्टैंड्स. अच्छा, खैर बेराम यार, मुझे लगता है बहुत ज्यादा टाइम हमने स्पेंड कर दिया है. पहले T20 पे आ जाते हैं जो पिंडी में हुआ था. अच्छा, उससे पहले एक दो चीजें मैं ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि we talked about the fielding and bowling and this that the other. उस्मान खान की कीपिंग was pretty good. That was good. Yeah, I was really impressed. बल्कि ये पहले T20 में ही he completed a stumping behind the stumps. Stumping behind the stumps. मेरा भी दिमाग खराब हुआ है. Front of the stumps से तो नहीं कर सकेगा. हाँ, exactly. Obviously पीछे से ही करेगा. So he completed a killer stumping and there was an acrobatic run out. और I didn't see him make any mistake. Mistake नहीं की. That's the good. Also they tried Sahibzada Farhan in the third T20 for 10 overs. For 10 overs behind the stumps. Which is a good thing. Yes. By the way, I like that. ठीक है, I like that, but I'm still not sold on Sahibzada Farhan as the backup keeper in the squad. वो एक अलग बात है. हाँ.
सेम है, लेकिन अगर वो लोग सोच रहे हैं ना कि ये बैकअप कीपर है तो अच्छा किया उसे गेम टाइम अब तो कॉन्फर्मेशन मिल गई ना हमें कि वो यही सोच रहे हैं कि यही बैकअप कीपर है। मेरे लिहाज से तो पूरे 20 ओवर्स करवाते हैं, पूरा टेस्ट आउट करते हैं। हाँ, आई मीन ही डिड मिस अ स्टंपिंग, लेट हो गया था, बट उसके अलावा ही डिडंट मेक एनी मिस्टेक्स, बट देन अगेन यार ही इज नॉट अ कीपर। आपको नजर तो आ रहा था उसकी सक्सेसफुल टेक्स में भी नजर आ रहा था कि कीपर नहीं है। वो जरा फील्ड वाली कर रहा था ना सेव्स। हाँ, मतलब वो एक टांग जो नीचे जाती है वो वाली चीज हो रही थी, ठीक है, नी टू द ग्राउंड। आई मीन लुक, ठीक है, यू ट्राइंग दैट आउट एंड यू आर गिविंग हिम सम गेम टाइम बिहाइंड द स्टंप। साथ वाली बात है, इट्स प्रॉब्ली गुड थिंग बिकॉज़ you're testing something, but your plan should not be to have Saib Zada Farhan as your backup keeper in the T20 World Cup. I feel like that's a recipe for disaster. और है कौन? हारिस को स्क्वाड में सेलेक्ट करो, वो दोनों को लेकर जाओ, उस्मान खान और हारिस को। नहीं ले आ सकते दोनों, आ सकते हैं नहीं, बैकअप ओपनर इस परफॉर्मेंसेस के साथ तो नहीं आ सकता ना हारिस। वो तो खैर अब पता नहीं, आई गेस सलमान अली आगा ऑलरेडी हैज फेल्ड एज कैप्टन बिकॉज वो मैच विनर ना बना सका मोहम्मद हारिस को। पहले उसको आउट ऑफ पोजीशन बैटिंग कराते रहे हैं, नहीं आई परफॉर्मेंस तो उसको काट दी है। हसन नवाज के साथ भी सेम किया था। हाँ, अभी कोई पता नहीं अगले स्क्वाड से भी बाहर हो जाए, हो भी सकता है। नहीं, अगर कभी अब्दुल समद को गेम मिलनी है ना सादी, वो हसन नवाज के एक्सपेंस से मिलनी है। यू ऑलरेडी नो दिस। आई नो दिस। और वो प्रोबेबली आप फर्स्ट T20 में देख ही लो ट्राई सीरीज में। आई एम नॉट इवन किडिंग। यस, एनीवे। अच्छा खैर, पिंडी में फर्स्ट T20 था। एक्शन पे आने से पहले यार लेट्स टॉक अबाउट द पिंक किट्स। लवली यार, ब्यूटीफुल। ये होता है पिंक का शेड, ये बेस्ट शेड है पिंक का, बेबी पिंक, कश्मीरी चाय पिंक। यार पीसीबी बेचो ये प्लीज, हमने खरीदनी। हाँ, और दूसरी चीज ये कि बेचो तो बिल्कुल स्टोर पे डालो, सारी चीजें, टोपियां डालो, जर्सी डालो, बकेट हैट इन पिंक, आई एम गोना बाय इट। Bucket hat in pink. Do all of those things and make sure that a certain amount of your proceedings that you earn from that, sale. Go to the cause. They should go to the cancer, cause. Definitely, they should go to those patients who cannot afford treatment. अगर आपने अवेयरनेस रेज करनी तो फिर पूरे ठीक तरीके से करो। एंड आई किड यू नॉट, आई माइट नॉट ओनली जस्ट बाय दैट पिंक जर्सी फॉर माई सेल्फ, आई बाय फॉर अदर पीपल एज वेल। वो इतनी खूबसूरत थी। मेक इट अ थिंग, मेक इट अ ट्रेडिशन। हर साल या हर सीरीज में एक मैच करा दो मेरी तरफ से। हर साल एक होना चाहिए, हर साल तो मिनिमम। आई वुडंट माइंड टू सी मल्टीपल पिंक गेम्स इन अ ईयर, बट आई लव दैट इनिशिएटिव। आई लव द किट्स इवन मोर। हाँ, वो पैड्स भी अगर पिंक कर देता तो अच्छा हो जाता। वो एक अलग बात है कि पिच पे वो वाली परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन किट बहुत खूबसूरत थी यार। कम ऑन, सेल दीस। यस, थोड़ा सा अपनी मार्केटिंग गेम ऊपर करो। ग्रीन ऑन पिंक वाला थोड़ा ऑफ कॉम्बो था। वो उसको भी फिक्स करो। पिंक पैड्स बनवा के रख लो क्या है, कभी कभी इस्तेमाल करने पड़ेंगे। कोई कवर रख लो उनका। हाँ, उस पे कोई कपड़ा चढ़ा दो। दैट माइट बी एन इनकन्वीनियंस, आई डोंट नो। खाओ, एक्चुअली वोंट बी। हेलमेट्स पे तो कवर चढ़ते रहते हैं, ठीक है। So yeah, वो फिट था सारा कुछ, बट साउथ अफ्रीका were the victors in the pink game. उन्होंने कहा यार हमारी भी एक पिंक गेम होती है, हमारे सामने ये हरकत है, ये हमारी चीज है, हम जीतेंगे यहाँ पे। और वो अपनी पिंक गेम्स हमेशा जीतते होते हैं बाय द वे। वो एक आधी हारे हुए, आई थिंक शायद हारे हुए ही नहीं है। नहीं हारे थे अभी, पाकिस्तान ने हराया था, पहली दफा शायद हराया था, ऐसा ही था कुछ। आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम कर दिया। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी पहली एवर पिंक गेम में ही आपको ठोक देते हैं। एंड इट वाज quite a comprehensive victory. South Africa defeated Pakistan by 155 runs. 155 नहीं हुए। Oh sorry. क्या हो गया? यार पता नहीं, दिमाग खराब हो गया। 155 रन्स कम सोया हुआ हूं, फिर कोई बोलेगा कि बहराम इज ऑलवेज स्लीप डिप्राइव्ड। वो जब आपने लास्ट टाइम बोला था यार, वो एक ही दिन में शूट हुए थे, ठीक है। मेरी चाट 155 होते, पहाड़ टूट चुके होते। सो या साउथ अफ्रीका, पहाड़ नजर तो आ नहीं रहे, शायद टूट ही गए हो। साउथ अफ्रीका, they managed to thump Pakistan by 55 runs in the first T20 in Rawalpindi. That's the only game that they won. But I mean, look, 194 तक रिस्ट्रिक्ट करना एक अच्छी चीज थी, because South Africa, they had managed 74 runs for the loss of Quinton de Kock in the power play. वो जा रहे थे, वो 200 से ऊपर जा रहे थे, 220 का जा रहा था। They had gone berserk. In response, Pakistan in the power play managed 34 for 2. And in 10 overs, Pakistan was 70 for 3. So Pakistan did not manage South Africa's power play total in 10 overs. Yes, और फिर आप कहते हो कि हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है। यार ये मसले है ना, क्या तो नहीं खेलनी, हम मान लेंगे। आगे तो यार 110 की या 111 की और 140 की चेस थी ना। You don't need to go fast enough over there. That game is almost over, especially in conditions which are suitable for batting. Those two games, especially the second game, was over in the power play. Yeah. South Africa's batting power play में खत्म हो चुकी थी वो गेम। हाँ,
हाँ अब खैर Pakistan's bowling pegged things back nicely. Nawaz in particular, 3 for 26 उसका था. Saim Ayub took 2 for 31. Those were brilliant performances on the day. क्योंकि South Africa at the 10 over mark were 111 for 3. वहां से to restrict them to 194 for 8 is a good comeback. Yeah. मतलब आपने आखिरी 10 ओवरों में you've only conceded 83 runs and you've taken 5 wickets. हाँ उसमें भी मतलब ओवरऑल बॉलिंग वाज ऑलराइट. नसीम और शाहीन की थोड़ी सी गंदी बॉलिंग थी. Naseem kept feeding the pads and the hips of bowlers. Short बॉल करा रहे हो आप शॉर्ट फाइन लेग रख के. मुझे आज तक ये चीज समझ नहीं आई. नसीम इन हिज फर्स्ट 2 ओवर्स वाज सो पुअर कि हम लाइव बैठे हुए थे और हमें तप चढ़ी. पथेटिके. और शाहीन की ओवरऑल अच्छी गेम बिल्कुल भी नहीं थी. ही कंसीडर्ड 45 आई थिंक इन 45 or 46 something like that. We'll come to performances towards the end. लेकिन नसीम का जो लास्ट ओवर था दैट वाज गुड. डेथ में आके जो उसने करवाया था वो मुझे लग रहा था कि शुक्र है कुछ अकल आई है. और पता है ठीक है, if you've conceded 194 runs, it's not the end of the world. You should be chasing that because you know it was a batting surface. बैटिंग फ्रेंडली सरफेस. और पिंडी के साइज भी छोटा ग्राउंड का और पिंडी में चेज होता है यार. हाँ पिंडी में चेस होता रहता है. स्मॉल बाउंड्रीज, अ वेरी डिसेंट वेरी गुड बैटिंग सरफेस, राइट, क्वाइट फ्रेंडली टुवर्ड्स यू नो बैटर्स. हाँ देयर वाज सम शुरू में बॉल थोड़ी सी टॉक कर रही थी जो पाकिस्तान ने नहीं यूटिलाइज किया. I mean there was definitely some purchase with the new ball for seamers. ठीक है, Pakistan didn't utilize it but it was there for the taking. And then some balls kept really low in Pindi. Despite those things, I felt like it was a really good batting wicket. बल्कि वरुण ने हमारे लाइव में एक बात बड़ी जबरदस्त बोली थी. उसने कहा था is this a power play wicket? क्योंकि South Africa scored 74 runs in the power play. उसके बाद they score 120 runs in 14 overs and they lose 7 wickets. It wasn't a power play wicket though. मुझे भी नहीं लग रहा था. मुझे लग रहा था कि चेस हो सकता था. क्योंकि पाकिस्तान का देख लो ना, अगर पावर प्ले विकेट होती तो कुछ कर ही. वो तो पाकिस्तान को देख के मैं कभी पाकिस्तान को देख के तो मैं कभी सरफेस को जज ही नहीं कर सकता ना. ये तो बात ठीक है ना, बॉलिंग में ना बैटिंग में. So that's where you lose the game. South Africa 74 for 1 after the power play. Pakistan 34 for 2 after the power play. 40 runs worse and 1 wicket worse as well. And you are 70 for 3 in 10 overs, which is still 4 runs worse and 2 wickets worse than South Africa's power play total. आप 10 ओवरों में नहीं वो कर पाए. It is shambolic, honestly. Yeah, but there were some stellar performances from South Africa in that game as well. Yes. Yeah, I mean, Riza was all right. Riza ने 50 मारी थी. यार Riza की थोड़ी flawed 50 थी. It was a innings of 2 phases. Yeah, it was like a really good innings at the start and then he kind of fell off because at one point Riza Hendricks was 35 of 15. Then he gets to his half century and 33 deliveries. So he takes 18 balls to get 15 or whatever, जितने भी 50 से ऊपर शायद निकल गया वो. But 18 more balls to get to his 50 from 35 runs. And then he ultimately ends up with 60 of 40. He had a shit series otherwise. This is also slightly flawed. Not इसी मैच में बल्कि I would rate Tony DeZorzi's effort with the bat, Quinton de Kock's effort with the bat. DeZorzi, who was making his T20I debut. Yeah, who had an average of less than 20 in T20s overall. And a strike rate of less than 120. 119 बल्कि 118.5 इस तरह कुछ थी. वो आकर बड़ा जबरदस्त खेला. खैर, he's had a brilliant tour. खैर, Linda was also great. Linda and Corbin Bosch were great. Yeah. Linda was the player of the match यार. Bat and ball वो तो पता ही था Linda ने करना है पाकिस्तान के लिए. वो रोका भी जा सकता था. Babar Azam dropped a catch. Yeah, he dropped Linda in the deep when he was on 18. Linda कर गया 36 of 22. फिर वो obviously slow left armer है. Ball के साथ आया. पहले Saim Ayub took him down and then he ended up with figures of 3 for 31 in 3 overs. So he was player of the match. Corbin Bosch was also brilliant. He's been brilliant throughout this series, by the way. In that first game, he was at his best. 4 for 14, including Babar Azam's wicket, वो जो उसने स्प्लाइस की थी. डक पे जो गया था बॉबे. हाँ, सिल्वर डक पे गया था. So yeah, आपको पता है, you've played Corbin Bosch already. उसने भी कसम खाई हुई कि पाकिस्तान को हमेशा पेलना है. उसने और लिंडा ने. These two guys always perform versus Pakistan. महमूद को जितनी तब बॉश पे चढ़ती है ना, कहता ये मुझे कहीं मिले, इसको नहीं छोड़ना. But yeah, he had the best bowling figures of that game, 4 for 14, and he cranked up the pace. Yeah, 145 plus. He consistently clocks 145 plus, bro. He is quite quick, and then also he bowls hard lengths. Yes. आपको पता है वो ये करेगा. You have to be able to counter that. अरे वो बाबर वाला जो डिसमिसल है वो पता था कि ये करेगा ये. Yeah. Babar was just too late on the ball. He was an eternity late, a light year late. Yes sir. ठीक है, although light year is a अच्छा ठीक है time होता है, वो is a construct of time, I ठीक हो गया or a metric of time. But हाँ, उसके अलावा यार I liked Lizard Williams as well. नहीं, I liked Lizard Williams, लेकिन best बात उसकी bowling नहीं थी. Yeah, वो थी ये मैंने स्पेसिफिकली नोट सिर्फ उसकी सेलिब्रेशन के लिए रखा हुआ है. ये मुझे सुनिए क्या क्राउन पहन रहा था, जो भी कर रहा था वो किंग वो है ना, फिर किंग कर लेगा. Wizard King. Yeah. I mean, look, honestly,
if I look at all of South Africa's seamers in this series, when Janssen and Rabada are available, I think Lazard Williams could potentially get into the squad. अभी तो कोच जिया भी नहीं है. हाँ, क्योंकि खैर एक्चुअली कोटजिया भी नहीं है ना, कोटजिया ही आता है, वो नहीं बेचारा आ पाएगा. हालांकि इन दैट फर्स्ट T20I Lazard Williams took 2 for 21 and 3.1 overs. Love the celebration. It will stay etched in our memories forever. जिस तरह वो सैफुद्दीन के झापे हैं, ये तो लजाद का ये जो तस्वीर खींची है ना उसने, तस्वीर थी क्या थी मुझे नहीं समझ. तस्वीर ही खींची है उसने, पता नहीं कोई पुराने जमाने वाले कैमरे के साथ. बट लुक, द बॉलिंग वाज रियली इंप्रेसिव. हाँ, पाकिस्तान फक्ड अप रॉयली विद द बैट, तो हम पॉइंट आउट कर ही चुके हैं. पावर प्ले में डन था मैच. द ओनली परफॉर्मर फॉर पाकिस्तान हु गॉट पासिंग ग्रेड्स इन दैट गेम वाज मोहम्मद अवाज. yes. उसने बैटिंग भी, ही वाज पाकिस्तान's बेस्ट बैटर. 36 of 20, ये उसने, he was looking really good, और बॉल के साथ तो he was really good. I mean, that was his best game with the ball. 3 for 26 and 4 overs, and then that 36 of 20. तब तक मैच बुक चुका था, but it's still a really good performance, better than anyone else. So he was Pakistan's only shining light. बाकी even though bowling में Saim Ayub did his job as well. Saim Ayub only bowled a full quota in that first game. उसके बाद दूसरे मैच में कराई नहीं, और आखिरी मैच में शायद 1 ओवर कराया था, 5 रन दिए थे. But 2 for 31 for him in that first game. And look, people will look at a scorecard and say कि यार he scored 37 of 28 as well. But if you were watching that game, my God, horrible. He took eons to get going. An eternity and 3 quarters. Offside पे कनेक्ट नहीं हो रही थी, और वो वही बॉल करवाया जा. ऑफसाइड की बॉल्स थी. Saim was trying to play his no look shot up and over fine leg. वो फिर कवर ड्राइव के लिए जा रहे, स्क्वायर कट के लिए जा रहे, कनेक्ट ही नहीं हुई. Yeah, either he drove or cut or tried that pet shot. 0 feet movement. 0 feet movement, premeditated shots, really poor innings. 5 of 13 था शायद एक पॉइंट पे, फिर एंड में लिंडा को मार दिया, तो 37 of 28 हो गया. It's a flawed knock. It should not be celebrated. I wasn't happy with it one bit. आगे जाकर उसके रन आए, उसकी तारीफ भी करेंगे, बट यहाँ पे तो यार, I mean, क्या था वो, we got a comment on our live that he's getting beaten more than an omelet. Yeah, which love is that. Great. I guess उसको refine करे तो he was getting beaten more than an egg in an omelet. बिल्कुल ठीक था. अच्छा, बिल्कुल ठीक था. खराब कर दिए मैंने. चलो, ये फेंटे लग. Loved the analogy. कुछ 3-4 दफा इस्तेमाल भी कर चुका हूँ. Sorry, I've forgotten who said this. हाँ, जिसने भी बोला प्लीज कमेंट कर देना. बट हम जब भी इस तरह कोई चीज कमेंट से पढ़ते थे जो हमें पसंद आती है, वो इनकॉर्पोरेट ही हो जाती है. सूफी मैक. हाँ, सूफी मैक जो नाम दिया है हमारे एक जानी तो बन जाओ. हाँ, लेकिन एक सब्सक्राइबर ने दिया था. और ऑल्सो सादी, एक मुझे अभी चीज याद आई है. हाउ पुअर वाज पाकिस्तान's रनिंग बिटवीन द विकेट्स इन द सीरीज. पथेकेटिक ही थी. पहली स्ट्राइक रोटेशन का मसला है. यू हैव अ डॉट बॉल प्रॉब्लम. साहिबजादा फरहान हैज अ डॉट बॉल प्रॉब्लम. मेरे ये देख लिए मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे. तुम्हारे हाथ ने ऑलरेडी साहिबजादा फरहान बोल दिया था, तुमने नहीं बोला था, क्योंकि निकल नहीं रहे थे ब्रो. इतनी तब चढ़ गई थी मुझे. साहिबजादा फरहान तो भागते ही नहीं यार, भागता भी नहीं है. ही इज lethargic in the sense that 2s are 1s, 3s are 2s. Sometimes there's a quick single which doesn't ever happen. ठीक है, बहुत ज्यादा रन यहाँ पे लूज कर देते. हाँ, वैसे ही यार, you know that you struggle when it comes to taking singles as a side. Strike rotation का मसला पहले ही है. If you couple that with poor running between the wickets, आप और अपने आप को cripple कर देते हो. And साहिबजादा फरहान तो यार, it's either smash, block or get beaten. Smash ... beaten ... smash. या तो वो बीट हो रहा है, ठीक है, either he is just playing the ball straight to the fielder or blocking it, or he's hitting out. This is not a great formula. अच्छा, हाँ, उसकी हिट्स आर रियली गुड. ठीक है, जब मारते हैं तो लगती है, और जब नहीं भी लगती ना तो लग जाती है. फील्ड से क्लियर हो जाती है वो पावर प्ले में. एटलीस्ट he has enough power that he can muscle the ball beyond the inner ring circle. लेकिन और कई दफा वो टो एंड भी करता है, और उसकी हैकी शॉट्स भी होती है, पूरी टाइम नहीं होती, फिर भी चौके लग जाते हैं. लेकिन बाकी गेम नहीं है ना यार, वहां पे मरवा जाते हो. अगर आपने पहली बॉल पे 6 मार दिए, उसके बाद 5 डॉट खेलिए, तो you're 6 of 6. He has the worst dot ball percentage for any batter in Pakistan's squad इस वक्त जो खेल रही थी. It is poor. It's close to 50%. It is poor, yeah. And it's a constant trend. एक थीम ही बन गई है कि यार, even if he scores a boundary in the over, अगली 3 डॉट्स आ जाएंगी, फर्क हो, वो चौका नलिफाई हो जाएगा. Now it's just 4 singles. ठीक है, he needs to rectify this. Pakistan also need to get better at strike rotating and not play so many dot balls. तुमने वो ग्राफिक देखा होगा, 2023 onwards dot ball percentages कितनी बढ़ गई हैं, close to 40% हो गई हैं. 33% तक ठीक है यार, चलता है, ठीक है. 30% would be great. 40% is high. It's really high. 40% का मतलब है कि आप कोई 50 एक बॉल से करीब डॉट खेल रहे हो.
50% would be 60 balls, right? 50 बॉलें जाया कर दी हैं, ये नहीं चल सकता है। Yeah. ये नहीं चल सकता। शायद वो 48 बनता है वैसे 40%। ठीक है। 8 ओवर। 20 में से 8 ओवर आपने डॉट खेलते हो आप। 40% के करीब आपकी डॉट स्कोर बनाते हो आप 12 ओवर में बनाते हो। ये क्या बात? आपके सारे टोटल जो है वो 12-13 ओवर की हैं। 7-8 ओवर आप डॉट खेल रहे हो। आप 5 ओवर जाया कर लो डॉट, बस उससे ज्यादा नहीं है गुंजाइश। 5.3 कर लो। हाँ 5.3 से ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। और अगर तो आप कोई एलीट हिटिंग टीम होते तो फिर समझ आती कि सही है। आप वेस्ट इंडीज हो, वो 2016 वाली डॉट एंड स्मैश इज फाइन। यू आर नॉट दैट टीम। You are going to need to rotate strike. और साहिबजादा फरहान epitomizes this issue. Issue है across the board. साहिबजादा poster boy issue. ठीक है, so that was really frustrating. और वही वाली बात है, फिर आगे भाग भी नहीं सकते। हालांकि running between the wickets was good अभी a little while back. ठीक कर रहे थे। नहीं, साहिबजादा फरहान का मसला है। साहिबजादा फरहान का मसला है, but overall as a team, running between the wickets looked to be sorted. या आकर they couldn't just nail that down. 30-20 में अच्छी थी। 30-20 में बाबर ने सलमान अली अगर रैन टूज हाँ वो अच्छी थी, वो अच्छे थे, लेकिन देन अगेन साहिबजादा फरहान नहीं अच्छा था उसके अंदर भी। बाकी एक और मुझे टैक्टिकल मसला याद आ गया जो कि फ्रंट एंड सेंटर है। बाय द वे वी शुड स्टार्टेड विद दिस। व्हाई इज बाबर आजम बैटिंग इन नंबर 3? ओपन विद हिम। यार उसमें दो चीजें साइम का भी केस है वहां पे। साइम अयूब इन द फर्स्ट एंड सेकंड ओवर्स ऑफ T20Is averages 8 with the bat in the first over and 14 with the bat in the second over. That is enough evidence कि आप इसको डिमोट करो फर्स्ट ड्रॉप पे। हो गया था डिमोट, अभी हुआ था, वापस आ गया ओपन करने। ऊपर से सादी 10 ducks in 49 T20I innings। मैं थोड़ा और उसको नैरो डाउन कर दूं। 7 ducks as opener in 40 innings. Last 6 ducks as an opener जो उसकी आई है ना has come in the last 20 innings, जो कि बांग्लादेश होम सीरीज जो थी ना पाकिस्तान की, वहां से शुरू हुई है। फर्स्ट T20 में इसने डक ली थी, उसके बाद 5 और ले चुका। I mean in the Asia Cup, 6 और ले। In the Asia Cup alone he served enough ducks to feed New Zealand. ठीक है, 6 ducks in last 20 innings. So that's enough evidence. You've got the batting average in the first 2 overs, 8 in the first, 14 in the second. T20Is में 49 innings in T20Is, 10 ducks. 40 innings as opener और उसमें से 7 ducks, और फिर last 20 innings 6 ducks. It's insane. As an opener. This is an obvious cue that you demote the guy at the first drop. और ऊपर से बाबर आजम के ऊपर जब आओ, और बाबर आजम सबको पता है पावर प्ले में वो pierce करेगा गैप से। That's his best phase. That is his best. We'll get to play more pace. उसने जितने अपने रन स्कोर किए होंगे ना T20Is में, I'm pretty sure 80 to 90% as an opener किए, शायद 95% as an opener। हाँ, मतलब obviously we don't have the exact statistic over here, साथ निकाल रहे हैं, but बाबर आजम का चक्कर ये है यार कि despite the fact that he ultimately performed, और उसके ऊपर तफसील में बात होगी, as you know a batter skill set wise we have seen him get stuck versus spin. He may not necessarily always lose his wicket, but he will pretty much always get stuck. वो अभी चलो I'll credit him later on for employing the sweep and all of that. Aerial sweeps मारी है मुझे थोड़ी। I was really happy. हाँ, I'm chuffed for Babar and for everyone who is his fan also कि चलो यार मेहनत कर रहा है, but बाबर आजम को आप सही तरीके से optimally utilize ही नहीं कर रहे। It's not optimal utilization of his resource as you know a batter if you're not opening with him. You open with him and Sahibzada. Saim can come first drop. That doesn't mean कि Babar won't play spin in the power play. Teams will still throw in spinners, but एक end पे Sahibzada Farhan है who demolishes spin in the power play. वो थोड़ा सोचेंगे। फिर एक और बात ये आ जाती है यार कि if your openers survive the power play, फिर बाबर आजम को क्या तब भी first drop भेजोगे? In the middle overs when the spinners are on, he sometimes struggles to rotate strike as well versus spin. Forget hitting. हाँ, और फिर बाबर का हमें पता है वो जितना लंबा खेलेगा उतना तेज होगा। हाँ, वो शुरू में फंसेगा, लेकिन वो कैचअप अगर खेलता है तो वो फिर कैचअप कर लेता है। उसको आप ये कहो कि यार आप हमें 60 रन इन द पावर प्ले किसी तरह दो, और फिर उसके बाद आप वैसे you switch on. Even in his best days as a T20 bat, he was a catch-up knock player, and then he would always convert, pretty much always. यार देखो, करियर उसका स्ट्राइक रेट 128.99 है in T20Is, लेकिन एज एन ओपनर उसका स्ट्राइक रेट 130.56 है। There you go. 4,302 रन्स उसने ओवरऑल मारे, ठीक है, T20I करियर में अपने 2,973 हैव come as an opener. That is quite a high percentage. ऊपर से he has become the leading run scorer in T20Is in this series. And most 50 plus T20I scores. Yeah, most 50 plus scores भी उसके हो गए. He's overtaken Kohli in 50 plus scores and he's overtaken Rohit in overall run tally.
yaar, with an average of less than 40 and a strike rate of less than 129, that's still not stellar, although I will say this, it's still an accomplishment. I mean, Give him credit. देखो Accumulator तो रहा है. हाँ, ओवरऑल रिकॉर्ड तो नहीं आप और क्रिकेट बदल गई ना, क्रिकेट इवॉल्व्ड. और ये नहीं evolved. Yeah, Babar became outdated, but before that he was doing more than well. और तब आपकी स्ट्राइक बॉलिंग इतनी जबरदस्त थी कि you could defend par totals, and in their prime Babar and Rizwan were a really good chasing pair. बल्कि इनकी कोई 5 तो 150 प्लस की पार्टनरशिप्स है as a pair in T20 eyes. लेकिन वो T20 क्रिकेट यूं करके बदली है, यूं करके, और हम नहीं बदले. हाँ, बाबर नहीं बदला और रिजवान नहीं बदला, और बाकी टीम भी अपेरेंटली कहने को बदली है लेकिन बदली नहीं है. यार, सामने आपके it's a massive difference in T20 cricket overall since the 2022 World Cup to 2024 World Cup. और अब और पूरी गेम ही बदल गई है. और 2024 वर्ल्ड कप में श्योर लो स्कोर्स थे, लेकिन that was obviously conditions dependent But as well. also, how did India win that World Yeah. Cup? By playing modern day attacking brand of cricket. सही है? And then they needed Kohli in the final, so there's no one correct way, right? हाँ, वो श्रोडिंगर्स कोहली था फाइनल में. वो हार गए होते फाइनल तो कोहली को गालियां पड़ती. लेकिन अब हाइंडसाइड में देखो तो वही शायद चाहिए था. एग्जैक्टली, वो प्रेशर में रन्स दे गया आपको, गॉट टू रिस्पेक्टेबल टोटल एंड दे वर एबल टू डिफेंड इट. इसलिए तो श्रोडिंगर्स कोहली है. अब 37-50s हैं उसकी T20 आईज में बाबर की, और 25 एज एन ओपनर है. हाँ. 3 सेंचुरी जो आई है एज एन ओपनर आई है, तो आप मगर वो ये नहीं सोच रहे, क्योंकि सलमान अली आगा ने बोला है इन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस, ही मेंशन्ड दैट बाबर आजम, हिज वर्क एथिक इज ग्रेट, एंड इफ ही कंटिन्यूज टू बैट लाइक दिस एट नंबर 3, Pakistan will win a lot of games. That's not right. What's the insistence on Babar batting at first drop? I think What's the rationale of Babar batting at first drop? Yeah, He's going to play more overs of spin outside the power play. The runs will dry up. अभी तो आ गई एक परफॉर्मेंस, मगर जरूरी थोड़ी कि ये रिपीटेबल हो. और जब साइम अयूब ओपनर खेलेगा आपके सामने 20 इनिंग्स है, उस प्रीवियस 20 इनिंग्स में 6 डक्स है, नेचुरली नंबर 3 को ओपनर ही आना पड़ना. Shout out to Varun for getting us those batting averages, by the way. Alvacondenase, जो कि हमारा जानी ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट है, आप लोग भी बन सकते हैं. सेगमेंट निकल आया है बहुत अच्छा. जानी ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट बनने के लिए आपको 2-3 तरीके से बन सकते हैं. पेट्रियन है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. आई इनकरेज पेट्रियन से बने, आपके लिए भी आसान है, हमारे लिए भी आसान है. इजी पैसा है, 031936025545 इज द नंबर. 1500 पर मंथ पे आपको इंक्लूड कर देंगे. जानी जो कि डिस्कॉर्ड का स्पेसिफिक चैनल है. बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दो इंस्टाग्राम या ट्विटर पे, और वहां पे आपको वो मिल जाएंगी 1500 पर मंथ पे. वैसे डिस्कॉर्ड इज ओपन for everyone to join, free. आप join करो, बातें करो, लेकिन जानीस. Yeah, you'll have to become a Jani to talk to Saad, myself and Mahoon exclusively. Baaki yaar, as I always mention, if you live under a rock in 2025 and still don't have online banking, we've still got you covered. Saad, Mahin and I, all three of us live in Islamabad. Our office and studio is located in the E113 Markaz. So come seek us out, और मुंह पे मारो 1500 रुपए. And per 1500 payment, we'll make you Jani the podcast for 1 month. If you also choose to gift the Pro Sports podcast an authentic sports jersey, we will make you a Jani the podcast for 6 months per jersey. बाकी inclusive community है, सब हमारे बहन भाई हैं. बहुत बहुत मजा आता है. Adore all of those guys. आ जाओ. ये पोस्टर्स भी आप लोग पोस्टर्स भी ले लो यार. पोस्टर्स हैं, ये शाहीन का है, बाबर का ये है, मेरे पीछे एक और शाहीन का है, और पेस यार है. पेस यार वाले पे यार, इम्मी, वैकार, वैज, शेबी. Why would you not want those guys on your wall? Fast bowling heritage right there in one poster. किसी और ने कभी बनाया भी नहीं आज तक. हमारा वाला खरीद लो. और बाकी अगर बाबर की आप चाहते हो कि फॉर्म कंटिन्यू रहे, तो शादी दिखा दो पीछे. ये वाला तो लाजमी लेना चाहिए. और अगर आप चाहते हो कि शाहीन ओडीआई सीरीज अपनी एज कैप्टन डेब्यू जो उसकी सीरीज है वो जीत जाए और फिर वर्ल्ड कप जितवाए, तो ये दोनों लेने पड़ेंगे. एक से काम नहीं चलेगा, दोनों लेने अभी, वरना फिर आप फैन ही नहीं हो पाकिस्तान के. बिल्कुल. फैन तो अच्छे बुरे वक्तों में साथ होते हैं ना, और पोस्टर्स खरीदते ताकि फॉर्म वापस आए. यही तो हरकत होती है यार. दाऊद थोड़ा एसी चला दे यार, थोड़ी गर्मी होगी. शादी जो है ना, इसको बड़ी फैसिनेशन है एसी के साथ. एसी के साथ पसीने आ रहे हैं. आज जब मैं जैकेट नहीं पहन कर आया ना, इसने मुझे ठंड से मार देना. याकूट यार, थोड़ा 16 पे ना चला हुए, कोई 25 का. I've got one. Yes. Ivan Jakitic. अच्छा ठीक है. अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन टू द सेकंड T20, मैं एक बात बता दूं. हम साइम अयूब की डक्स और उसकी ओपनिंग फॉर्म की बात कर रहे थे, एंड हाउ ही शुड बी बैटिंग एट फर्स्ट ड्रॉप. ही वुड हैव बीन डिसमिस्ड फॉर 0 इन द फर्स्ट T20 एज वेल. वो तो ब्रीड्स का ड्रॉप्ड हिज कैच इन द फर्स्ट ओवर. शॉट अच्छी थी सीधे हाथों में, वरना वो 37 of 28 जो बुरा नॉकी था, बिकॉज ही टुक सो लॉन्ग टू गेट गोइंग एंड केप्ट गेटिंग बीटन. वो डक होता है कौन? 7 डक्स होते लास्ट 20 इनिंग्स में. वहां पे कैच ड्रॉप कर लिया, पकड़ लिया होता, कैच ड्रॉप कर दिया बीट्स का ने. बट खैर, यू नेवर नो, हैड बाबर कॉट द लिंडा कैच एज वेल, इफ पाकिस्तान वर चेसिंग लेट्स से 170,
maybe that game could have been won as well. Maybe. But then again, ये चीजें तो हो ही जाती हैं. I'm not going to vilify him for one drop catch because overall the fielding has been good. तो ठीक. खैर वहां से पिंडी रैप अप हुआ और चले गए सारे लाहौर. पिंडी शहर ये पिंडी. Pink kits were off, green kits were on, and Pakistan won the second T20. Yeah. It was quite an impressive win because ultimately, you know, your Pakistan's bowling was far too strong for South Africa. वही वाली चीज टॉस जीत कर bowling तो की जिसकी हमने बात की है, but Pakistan, you know, kind of had South Africa floored in the power play itself. Salman Mirza, bro. Insane. Leroy Insane. Yes, Lorenzo Insigne. Yeah, I mean, South Africa were 4 down for 31 runs in the power play. So was game done over there. फिर वो 10 overs में 66 for 6 थे. एक point पे वो 77 for 7 भी थे. फिर वो 88 for 8 भी थे. मगर वो 99 for 9 नहीं थे. 88 for 8 नहीं. 88 for 8 थे. 99 for 9 नहीं थे. मैं यही कह रहा था लाइव पे कि ये भी करा दो फिर. They were 86 for 8 in 15 overs and then obviously bowled out in 19.2 overs for 110. It was a nothing chase. Pakistan had their best power play in the series in that game. वो भी इतना अच्छा नहीं है. 49 for none in 6 overs, but then again कुछ करना ही नहीं था. 110 की चेस पे तो यार आपका पावर प्ले में 25 रन भी बने, आप जीत जाओगे. ठीक है, 4 की रन रेट पे भी आप पावर प्ले में खेल लो तो आप जीत जाओगे. So I suppose like Pakistan does well to chase down that target in 13.1 overs. It was a 9-wicket win for Pakistan with 41 balls to spare. But ये बात याद रखें यार, बैटिंग पूरी सीरीज में पहले मैच के बाद टेस्ट ही नहीं हुई और बॉलिंग ने आपको सीरीज जिताई है. This is an important footnote. सलमान मिर्जा, राणा फहूम, ओए खत्म ही कर दिया था साउथ अफ्रीका को यार. मुका दिया था, उड़ा के रख दिया था, पड़खचियां उड़ा दी थी. पड़खचर्स. Yes. Yeah. Rana Fahum, by the way, player of the series. Yeah, I would have given it to Salman Mirza. I know कि Rana Fahum was also candidate. असल में no batter worked twice. एक परफॉर्मेंस है साइम की भी और बाबर की भी. ठीक है, साउथ अफ्रीका की भी एक ही 50 थी, रीजा की. और बाकी अगर बॉलिंग में देखो तो शाहीन had 1 good game, 1 poor game. नसीम had 1 good game, 1 poor game. Salman Mirza and Rana Fahum were 2 bowlers जिन्होंने who had 2 good games, but wicket tally Rana Fahum का ज्यादा था, उसको दे दिया. मगर गेम्स आपको सलमान मिर्जा ने जिताई, especially the second one. He was the player of the match, deservedly so. Player of the match. Look, यार, first of all, he cranked it up to high 130s consistently. 140 भी touch किया. 140 touch किया, कई दफा किया. 139 काफी consistently touch. But the main feature or main hallmark of his bowling was with the new ball, he got that ball to nip off the deck. Nipsey Hussle बना हुआ था. It got a bit nippy out there. बॉलिंग की तो तारीफ करनी है यार, लेकिन फील्डिंग की क्या करनी है यार. हाँ, I mean Pakistan like we said have been splendid in the field. कुछ ड्रॉप कैचेस हैं इधर उधर. बाबर का पहले T20 आया में यहाँ पे यार सलमान मिर्जा एक नसीम की विकेट खा गया. It was a very, very straightforward catch. गोद में आया था. He was at short third. Beatska was on 0. Naseem was bowling and he dropped that catch. Very next ball, he misfields a ball in the same region. चौका. टांगों के बीच में से. तो फील्डिंग डेफिनेटली कंसर्न है सलमान मिर्जा के लिए. एंड बिकॉज वी आर कंप्लीटिस्ट्स ऑन दिस पॉडकास्ट, तो सब कुछ करना पड़ता है. जिक्र तो जरूर होगा उसका. वी हैव टू हाईलाइट इट, बट लेट्स टॉक अ बिट अबाउट हिज बॉलिंग. सादी, आई मीन, very second delivery. Reza was cleaned up. He chopped on. शुरू में मुझे लगा कि निप की ये बॉल, लेकिन वो chopped on भी इतना वाइड नहीं था. It was within the stumps. Yeah. वो इस तरह नहीं था, कट नहीं मार रहा था. ठीक है, he was defending the ball and so yeah, he cleaned up or got Reza Hendricks to chop on with his second delivery. Then he bounces Tony Dezorzi out with his 12th delivery. Dezorzi. हाँ, तो पहले ओवर में भी विकेट और फिर टोनी डिजोरी को बाउंस आउट कर दिया. स्लोअर बाउंसर था शायद, जहाँ तक मुझे याद है. स्लो बाउंस. Last ball of his second over. Good on Salman Ali Agha that he gave him a third over in the power play. ठीक है, he had fucked up an over before in the field, dropped a catch and had that misfield moment. But then with his 14th ball, he pretty much bowled the ball of the series. That bail trimmer that got rid of Beatska. I think वो शायद लेग स्टंप से भी बाहर पिच हुई थी बॉल, या तो लेग स्टंप पे हुई है, लेग स्टंप से बाहर हुई है. एंड इट जस्ट शेप्ड अवे शार्पली. कटर था शायद. द वे दैट you know, prodigious shape away थी उसके ऊपर, and it clipped off stump, trimmed his bails. What a ball. Yeah, I mean, that's one for the highlight reel, man. In 3 power play overs, he took 3 wickets for 6 runs, basically pulled off a Josh Hazelwood, and ultimately ended up with 3 for 6 Hazelwood भी था ना अपने आखिरी मैच में जो Hazelwood ने खेला. Hazelwood ended up with figures of 3 for 13. Salman Mirza ended up with figures of 3 for 14. That 3 for 14 will go a long way. Honestly, मैं तो इस कैंप में था कि मैं कह रहा था कि सलमान मिर्जा की जगह अब्बास अफरीदी को सिलेक्ट कर लो. But if you want new ball options, Salman Mirza has proven a point. अब तो नहीं निकल नहीं निकल नहीं सकता.
ना निकालो भी ना भाई, हाँ, कोई सीन ही नहीं। He's done enough. This, I mean, for both Saad and myself, he was player of the series. उसको मिला नहीं, वो अलग बात है. शुक्र है प्लेयर ऑफ द मैच मिल गया दूसरे T20 में, deserved था यार। That was सलमान मिर्जा's T20, right? वो उसी का मैच है. वो ना होता तो शायद ना रिस्ट्रिक्ट करते आप। हाँ, नहीं 110 पे आपने जब ऑल आउट किए 19.2 overs, that's game done. Yeah. You, even if you have the worst day ever with the bat, you are still chasing 111. नेल्सन तो चेस कर ही रहे हो आप, but सलमान मिर्जा was the hero of that T20. Good for him कि वो बेंच पे यार प्रेशर डाल रहा है बाकियों के ऊपर कि मैं भी बैठा हूँ। ठीक है, That's good for a team यार। जितनी ज्यादा सिलेक्शन हेडेक होगी उतनी अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। बाकी नसीम शाह had a good game. नसीम शाह had a वो good थोड़ा game. अनलकी हो गया of course with the dropped catch and that misfield for 4, और एक और inside edge पे भी शायद चौका लगा था। Yeah, but he was much better than the first game. Yeah, I mean he removed Quinton de Kock in his first over with a slower one. Yeah. ठीक है, that was good. I love the pace variations that he's displaying, Naseem Shah. Same with Salman Mirza by Yes, the way. सलमान मिर्जा की भी अच्छी है, but Salman Mirza more so is accuracy उसका main weapon है, and the fact that he gets the ball to nip off the surface. But then again those slower bouncers, he got Dizori with that. Yeah, slower bouncers अच्छे कराए, राणा फोम ने भी अच्छे कराए by the way. राणे पे तो भी राणे पे आएंगे, but Naseem Shah had a game to forget in the first T20. बार you know, short fine leg वाला fielder रखकर if you're feeding the pads and hips, बार मतलब this is a recipe for disaster. You don't need to do much as a batter if you're being fed on the hips and on the pads and with a short fine leg fielder. चौका पक्का है, फिर शॉर्ट बॉल भी करा रहे हो आप यार, फिर फाइन लेग लेकर करो ये चीजें। पता नहीं क्या ऑब्सेशन है विद मुफ्त के चौके दे रहे हो। इससे मुझे एक और बात याद आ गई। ठीक है, फील्ड प्लेसमेंट ये वाली भी फाइन लेग पता नहीं क्यों नहीं लेते। उसके बाद दोनों T20 में सेकंड और थर्ड में बैकवर्ड पॉइंट जो है वो लिया ही नहीं हुआ, उन्होंने डी बैकवर्ड पॉइंट लिया हुआ, सिंगल निकाले जा रहे हैं वहां पे। मुझे इतनी तफ चढ़ी नसीम से ही तो मैं ये बात आता नहीं, क्योंकि नसीम को पढ़ रहे थे वो सिंगल्स, सबको ही पढ़ रहे थे फिर बाद में एंड में तो सबको ही पढ़ मुझे रहे बस फील्ड पोजीशन से याद आ गई है कि यार मतलब आप इतने डिफेंसिव क्यों हो जाते हो। ओवरऑल मुझे वैसे कप्तानी से ज्यादा मसले नहीं हुए, कप्तान से मसले जरूर हुए मुझे। उस पे आएंगे हम बाद में, बिकॉज पहले वाले T20 में भी उसका 2 of 7 था by the way. सलमान अली आगा का with the bat, and we'll come to him later. But साथ की बात बिल्कुल ठीक है, it got very annoying and very frustrating that they kept, you know, that fielder at deep point, backward point वाले एरिया में सिंगल्स ले ही जा रहे हैं। क्यों? Consistently. आप प्रेशर बिल्ड करो, आप क्यों दे रहे हो सिंगल? पावर प्ले में क्यों दे रहे हो वहां पे? It just didn't make sense. But look, Naseem came back strongly in that second T20. Again, 1 for 17 in 2 power play overs, unlucky. Catch drop हुआ. नहीं, he was good. 2 कतरियों पे चौके जिनमें से एक मिसफील्ड है, ठीक है. Slower one से Quinton de Kock की विकेट लेना, that's big. And then he came back at the death and bowled an even better spell. Removed Corbin Bosch. Yeah, and ended up with figures of 2 for 28. So at the death he took 2 for 11 in 2 overs. That 2 for 28 should go a long way because Naseem Shah hadn't performed in a hot minute. Yeah. किसी भी फॉर्मेट 2 for 11 नहीं 1 for 11 1 for 11 sorry 2 for 28 ओवरऑल 1 for 17 and 1 for 11 ये 2 ओवर्स का ब्रेकडाउन है बट या बहुत टाइम हो गया था सादी इनफैक्ट आई फील दैट सिंस द एंड ऑफ दैट 2024 T20 वर्ल्ड कप दैट डिजास्टरस एंड टू दैट वर्ल्ड कप नसीम हैड जस्ट फॉलन ऑफ अ क्लिफ गिवन अप टाइप लगा हमने यार अभी पीछे ना अगस्त में मैंने और साथ ने एक शो किया था जिसमें वी डिड ऑल द नंबर्स फॉर दीस प्लेयर्स in a specific period of time. I remember Naseem Shah's numbers were one of the main takeaways for me. Horrible. बहुत ही बुरे. मुझे सबसे ज्यादा तब भी नसीम पे चढ़ती है जस्ट क्योंकि मैं उसे रेट सबसे ज्यादा ही शायद मैं आज तक बोलता हूँ कि सीलिंग सबसे ज्यादा हाई नसीम शाह की है, शाहीन से भी ऊपर की सीलिंग है. और किसी ने बोला था लाइव पे, बल्कि हमारे कोई इंडियन दोस्त थे, सक्शी मे बी शायद, हाँ सक्षम नहीं था वो, स्वाति नंदा कुमार ने pretty sure बोला था कि यार even on his bad days Naseem Shah was a good enough defensive bowler that he wouldn't go for runs. Accuracy इतनी ठीक है, विकेट्स नहीं ले रहा लेकिन रन्स नहीं पड़ रहे. पिन पॉइंट एक्यूरेसी उसी जगह पे बॉल कराता रहेगा, ज्यादा पिटेगा नहीं. बट ठीक है, आई मीन लुक ही हैड अ डिसेंट डेथ ओवर इन द फर्स्ट गेम, स्लोअर बाउंसेस इसने भी कराई हैं और दैट डिलीवरी वाज रियली गुड जो विकेट ली थी इसने. बट यार you've got to pick up your slack. You are still a generational talent. You can still achieve so much for Pakistan. हाँ ना यार, मुझे डर लग रहा था इस बंदे का. अब यार आपकी परफॉर्मेंस एक आई है, you build on this. ठीक है, this 2 for 28 should give you some more, you know, confidence and boost your morale and fitness बेहतर करो. Pakistan needs you. Yeah. भाई हम कहते होते थे he's got that dog in him. अब नजर नहीं आ रहा. Make that dog bark again. यार ठीक है ना. यार ये माहिर मुझे पता नहीं था ये इसकी कह के आई है ना ये मेरी तरफ, तो
आवाज आ गई है मुझे इसकी एनीवे फिर राणा जी ने जो किया था ना, आई मीन इस वाली गेम में तो सबकी बॉलिंग परफॉर्मेंस अच्छी थी। राणा जी की तो फिर राणा जी ने तो यार ही इवन हैड बेटर फिगर्स देन सलमान मिर्जा। Now, Salman Mirza won you this game. Yeah. Don't get me wrong. ठीक है, his 3 for 14 is better than Rana Fahum's 4 for 23. But then again उस 4 for 23 में बेबी की Baby AB को bounce out किया है। Yes, sir. Again slower bouncer. Caught him off guard. With his third ball, he removed Baby AB. अभी पिटा था पिछले बॉल पे, चौका छक्का खाया था, मुझे याद नहीं। छक्का था। बाउंड्री खाई थी। छक्का था और उसके बाद with the very next ball on his third delivery of his spell, bounces out Baby AB with a slower one. फिर he gets Dono Ferreira, the कप्तान to chop on with his 12th delivery. तो 2 ओवरों में 2 विकेट ले चुके थे राणा फहूम। फिर यार तीसरे ओवर में पेनल्टीमेट डिलीवरी पे he gets Linda to play on. ठीक है, और फिर लास्ट ओवर में बार्टमैन को भी आउट किया, हर ओवर में विकेट ली। 4 for 23. यही तो चाहिए राणा जी। I think those are his best ever figures in T20 Those are, and I think उसकी रोल क्लैरिटी की वजह से ना परफॉर्मेंसेस थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिल रही है। थोड़ी सी नहीं, जरा ज्यादा। नहीं, अभी थोड़ी से और रन्स चाहिए मुझे, रन ऑफ गेम्स चाहिए। ऑफ गेम्स कम आई है, ऑफ गेम्स कम आई है, नवाज दोनों, लेकिन कोई गेम्स होती है जब ये नॉन एग्जिस्टेंट होता है। हाँ, मगर इफ यू लुक एट द हेसन एरा, these two guys, Mohammad Nawaz and Rana Fahum, have been cogs, main cogs. Have been. एक तो these two give Hassan the balance that he seeks. वो 8 तक बैटिंग चाहता है, उसको ये दोनों दे देते हैं। उसके बाद they have done more than is required of them with the ball. Honestly, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था ये दोनों इस तरह करेंगे। I think राणा फहूम का पहला प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड है। हम सलमान मिर्जा को देते, मगर इसका ये मतलब थोड़ी कि राणा फहूम की परफॉर्मेंस बुरी थी। मतलब वो सही कह गए, वरना मैं आ रहा था। खैर इस मैच में तो प्लेयर ऑफ द मैच सलमान मिर्जा को दिया था, बट 4 for 23 वाज अ फिनोमिनल एफर्ट। आई बिलीव एशिया कप फाइनल में इसका क्या था, फिगर्स कंप्लीटली नहीं याद, लेकिन 29 रन्स खाए थे। 3 for 29 या 4 for 29 था, ऐसा कुछ था। मुझे ये चीज याद होनी चाहिए, मुझे आमतौर पे भूलती नहीं होती, बट आई एम क्वाइट श्योर दैट दिस नहीं वो भूल जाना चाहिए। अच्छा या ये भी है। 4 for 23, you know, I'm pretty sure those are his best ever figures in T20. I quite confident on that. So Salman Mirza, Simo, Rana Fahum तीनों चले, स्पिनर्स भी चल गए, और फिर उसके बाद साइम ने आके बैटिंग से उड़ा दिया। हाँ, आई मीन उसमें आई थिंक स्पिनर से क्या था, आई थिंक 1 for 26 अबरार था और none for 13, और नहीं none for 19 नवाज था। बट देन द बिग talking point was Syam Ayub. 71 yeah of 38. 71 of 38 is fantastic. कुछ खूबसूरत शॉट थी। He was edgy at times. There were a few edgy boundaries. ठीक है, वही thick outside edges, third man fence पे चौके गए, और he was also fortunate, फिर से ड्रॉप हुआ ये। पहले मैच में 0 पे ड्रॉप हुआ, इस मैच में he was dropped by Baby AB on 23. So that wasn't ideal, truth be told. But उसके बाद you know he made them pay. He made South Africa pay big time. हाँ, आप ये आर्गुमेंट कैसे ला सकते हो सामने कि 111 क्या ही स्कोर था, बट यार फिर भी सही लाओगे ये आर्गुमेंट। हाँ, आर्गुमेंट ठीक है, there was no pressure, but शुक्र है कुछ रन्स आए हैं। ठीक है, फाइनली वी गॉट टू सी सम नो लुक सिक्सेस। नो लुकियां हो गई थी, वो दूसरी जगह बेबी एबी मार रहा था, उसने कहा मैं भी हूं ब्रो। मगर साइम का जो नो लुक 6 था वो 6 ऑफ द सीरीज था, द वन दैट वेंट अप एंड ओवर फाइन लेग। क्योंकि एक उसने नो लुक मारा मिड लॉन्ग ऑन के ऊपर से, फाइन लेग वाला जो था ना, लॉन्ग ऑन वाला पहले आया, फाइन लेग वाला बाद में आया। सो द नो लुक सिक्सेस आर बैक। अच्छा एक कॉन्टेस्ट होना चाहिए नो लुक सिक्सेस का, बेबी एबी और साइम अयूब का। समवन शुड मेक सम कंटेंट अराउंड दिस। बट आफ्टर गेटिंग ड्रॉप्ड ऑन 23 he gets to his 15-29 balls and ends unbeaten, right? On 71 of 38. Stellar performance. And एक तो चलो नो लुक शॉट्स लगी, despite the edgy fours he latched on to width. एक 6 over covers था। हाँ, 6 वो स्पिनर वाला ना, against Linda I guess, inside out up and over the covers, बहुत शानदार छक्का था वो। But I love it when Syam Ayub has a lot of range, you know, in his innings जो इसमें थी। His क्या कहेंगे, full array of shots was on display. Latched on to any width that was offered to him. 6 over up and over extra cover was great as well. There was a slog sweep for 6, ठीक है, and then there was also a big slog over mid wicket जिससे गेम खत्म की है इसने। ठीक है, वो जो बस वो तो खैर घुमाई है उसने। But yeah, I mean, there was also the slappy pull down the ground. I love those slappy pulls. Yeah, I mean, look, we know he's strong off his legs, but offside पे भी runs आए। Then again, one off नहीं चलेगा। One off तो नहीं चलेगा। There is a duck after that as well, but I'm happy that at least he got a score. He gave a confident interview after that कि मुझे पता है मेरी गलतियां क्या है, मैं उन पे काम कर रहा हूँ। साइम यार बस अपनी शॉट्स खेलनी है, कॉन्फिडेंस से खेलनी है, बट आई फील उसकी भी गलती नहीं है कि वो बार बार ओपन कर रहा है। फर्स्ट ड्रॉप पे बेहतर सेट होता है, ही प्लेज स्पिन बेटर देन बाबर। दोनों चीजें, हाँ वो मार सकता है ना स्पिन को एटलीस्ट। रिलीज शॉट्स हैं उसके पास। When Syam Ayub is on song, if you stray down his pads, it's a 4. या तो फाइन लेग वाले रीजन में या क्लिप कर देगा या नो लुक मार देगा। पता है वो
फंस जाता है जब नई बॉल को खेल रहा होता है ना, और कंसिस्टेंटली ऑफ साइड पे वो बॉलिंग करवा रहे होते हैं, इससे नहीं खेली जाती, इससे नहीं खेली जाती, वही कर रहा था ना। और फिर ये रिलीज शॉट के लिए जाता है जो मिस टाइम होती है, जो 30-20 में हुआ। सो इट्स बेटर कि उसे फर्स्ट ड्रॉप पे मूव कर दो, बाबर को ओपन करा लो, 2 इशू सॉल्व हो रहे हैं। हो रहे हैं, एक तीर 2 शिकार, 2 birds 1 stone। कोई तीसरी जबान में नहीं, आता चाहिए, बस काफी है, ठीक है। बट या लोग प्री मेडिटेटेड शॉट्स पे निकलने लग जाती हैं। साद सेड रिलीज शॉट्स की कोशिश करता है, वो ऑफ साइड की बॉल फाइन लेग के ऊपर से उठाने की कोशिश कर रहा है बगैर शफल किए, खड़े खड़े वहीं पे, फीट मूवमेंट होती नहीं, हाँ पाँव नहीं हिलते। बट दैट नॉक शुड काइंड ऑफ गिव हिम सम कॉन्फिडेंस, को साइम अयूब यू नो इज selected for his batting, but he is right now in the team because of his bowling. So this knock should elevate his or boost his morale as well, give him some confidence. बाकी you got to build on this. शुक्र है आ गया, वरना एक और ही बहुत ही खतरनाक बहुत लंबा पॉडकास्ट और चलने लगा, ज्यादा को 10 मिनट साइम पे लगाने पड़ते। बट गुड रेंज, फैंटास्टिक बैटिंग, गॉट ड्रॉप्ड, श्योर, मेड द मोस्ट ऑफ इट। ठीक है, गुड ऑन यू साइम। और भी हमें परफॉर्मेंसेस दो, बिकॉज ठीक है, आई लव द फैक्ट दैट यू ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन ऑलराउंडर एंड योर बॉलिंग इज की। ठीक है, 10 मिनट और लगाने पड़ते, क्योंकि 10 मिनट तो लगा दिए मेरा। हाँ, yeah, but yeah, I mean, look, ultimately Pakistan needs your runs. आपकी यूटिलिटी बैट के साथ ज्यादा 30-20 पे आ जाना चाहिए, मुझे लगता है। बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिए इस 111 रन चेस करते हुए हमने। Yeah, I mean, look, लेवल की थी वहां पे सीरीज, हमारा लाइव सबसे सक्सेसफुल वो वाला था। बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। Yeah, anyway. अच्छा, 30-20 similar-ish story. Pakistan won the match because of their bowling. Yep. South Africa were restricted to a very low total again. Should have scored more, लेकिन then again Pakistan's bowling was very very good. Yeah. I mean, Pakistan वैसे अजीब सी चेस थी। They should have won it more comfortably as well. वो तो एंड पे फिर विकेटों में विकेट गिर रही थी। Pakistan won that 30-20 chasing 140 with 4 wickets and an over to spare. Should have been like 6-7 wickets with 3 overs or 4 overs to spare. वो हमें पहले से पता था कि ये मैच के बीच में कह दिया था 19th ओवर तक जाएगा। ये रिंगते जाएंगे, और वो 19th ओवर के एंड में ही कंप्लीट हुआ है। प्रेडिक्शन सॉलिड थी वो वाली, ठीक है। But yeah, I mean, you've got to give credit to South Africa in a certain way over here, क्योंकि they had been restricted to 22 for 2 in the power play. ठीक है, उसके बाद they were 56 for 4 in 10 overs. To get to 139 for 9 in 20, वो भी एक छोटी सी रिकवरी थी। तो थी। Pakistan again, we playing it safe. They didn't want to make any statements. They wanted to ensure a victory. बस सीरीज जीत गए हम। पाकिस्तान were 36 for 1 in the power play. They were like, ठीक है, हाँ हम जीत ही जाएंगे। 36 for 1 हम भी ऐसे ही थे, हम कह रहे थे यार कोई गेम ही खिलवा लो हमें सुपर चैट से। मुझे इतना मसला नहीं है कि आप आराम से चेस करो छोटी चेस को, बट वो स्टेटमेंट का ज्यादा मजा आता है। I mean, 36 for 1 after the power play, 64 for 2 in 10 overs, 115 for 2 in 15 overs, and then they win it in 19 overs. 6 down. और ज्यादा कुछ लोगों की फट गई थी शादी। हाँ, मैं कह रहा था, वो कहते कुलैस्पस मैक्सिमस आ रहा है, हम कह रहे नहीं यार, अली ताबिश के भी मैसेज आ रहे थे। मैंने कहा नहीं जीत गए मैच, विकेटें वैसे ही गिर रही है मगर जीत गए। बट खैर, the main guy to talk about in that game is बाबा आजम। लेकिन उस पे आने से पहले थोड़ी बॉलिंग पे डिस्कस करके बाबर पे आएंगे ना। शाहीन with 2 wickets in the power play. I mean, he kind of killed the game over there, right? Shaheen ends with what, 3 for 26 in this game. He got Quinton de Kock to chop on with his second ball. और बहुत खूबसूरत बॉल थी वो, सही चॉप ऑन हुआ है वो, बहुत मुश्किल डिलीवरी थी खेलनी। और उसके बाद फॉरन वो गंदी बॉल थी। हाँ, गंदी बॉल भी विकेट मिल गई। कभी कभार इतना हो जाता है, सम डेज यू गेट बोनस विकेट्स। मैं कह के थक गया था कि लून डी प्रिटोरियस खेल क्यों नहीं रहा सीरीज में। वो आया बेचारा और एक पहली बॉल पे बाहर। उस्मान तारिक विद कैच। या बैंडाना बॉय। यस सर, क्या बैंडाना है बॉय का। एक वो नोमी पायन और साजिद की ग्लासेस, और इसका बैंडाना, उस्मान तारिक का बैंडाना, ये मुझे ला कर दो, हम हर शो में पहनेंगे। बल्कि ये आप हमें गिफ्ट करो प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट को, तो साल के लिए जानी बना देंगे आप। खैर, it was brilliant stuff by Shaheen. He killed the game in the power play, right? 22 for 2 in the power play, you can never recover from that. आप वहां से 14 ओवरों में यार 10 रन की रन रेट से भी खेलो तो 162 बनते हैं ना, and they got to 139. But yeah, after getting Quinton de Kock to chop on with his second ball, bonus wicket. Loon, ठीक है, short fine leg पे catch हो गया on a hat trick. Sheeno ends his power play with just 2 overs. तुम्हें मूड था कि तीसरा कराए, देना तो चाहिए था, मगर वो सलू मिर्जा को दे दिया ना। मैं चाह रहा था कि इधर तक भी ना पहुंचे, ये पहले खत्म हो ना, हम जल्दी घर जाए। But anyway, in 2 power play overs, Shaheen Shah Afridi returned figures of 2 for 10, and then at the death he got 1 for 16, 2 overs में 3 for 26 phenomenal figures. अगर बाबर आजम की जगह किसी और के रन आए होते तो ये शाहीन प्लेयर ऑफ द मैच था। वो तो क्योंकि पूरी दुनिया तरसी हुई थी, अवाम तरसी हुई थी। हाँ, मतलब
नहीं वैसे ये दे रहे थे His 3 for 26 is what wins I you the know, game. but इन्होंने बैटर कोई देना Happy day for both toxic fan clubs. Flan clubs बना दी मैंने, वैसे फ्लॉन क्लब होता ना वो हाँ। मुझे जहर लगता है वो। बात ये है कि अभी भी मुझे लगता है लड़ाइयाँ चल ही रही होंगी अच्छा। क्योंकि हमारी ज्यादा important हाँ, है। ये हमारा प्लेयर बेहतर खेला था, तुम्हारा वाला ज्यादा फजूल था। हमारे बंदे ने तुम्हारे लिए ज्यादा इजी करके दिया Yeah. खैर देखो, Swear to God. पिच जो थी ना लाहौर की, it did aid the side which bowled first. Yeah. There was a bit in it with the new ball. And then obviously due in the second innings है. So yeah, best time to bowl was with the new ball in the first innings, and Best best time to bat was the second innings. Dewy conditions की वजह इसीलिए से तो सीरीज आप यूं करके जीत गए आराम से आप निकाल गए हो यहाँ पे। 2-1 जीत तो गए हो, लर्निंग्स कम हुई है, नॉट गेटिंग इनटू दैट अगेन। हाँ ठीक है, वो पहला घंटा उसी पे था या बट माइक हैसन की टीम को बैटिंग बेहतर करनी होगी। दीज टू चेसेस एज वेल कुड हैव बीन बेटर इफ यू थिंक अबाउट इट। बट या फॉर मी शाहीन शाह अफरीदी, यू नो, ही हैड अ पुअर फर्स्ट T20, आई वाज टेरिबल। उसके लिए परफॉर्मेंस जरूरी थी कि नहीं इट्स जस्ट एन ऑफ गेम, मैं वापस आ गया हूं, मैं आजकल फॉर्म में हूं, 3 for 26, ये लो, जिता दिया मैच, पावर प्ले में जिता दिया मैच, पहले ओवर में 2 विकेट निकाल दी। ही रिवाइव्ड हिज फर्स्ट ओवर विकेट्स हेरिटेज। यस सर, कितनी 23 हो गई है ये शीनो के ना, वैसे फर्स्ट ओवर के इर्द गिर्द भी हमें कुछ बनाना चाहिए। बस 2 अभी काफी हैं। हाँ, अभी फिलहाल के लिए 2 काफी, खरीदो यार ये। They could not play him. Yes. ठीक है, but yes, love to see शाहीन शाह अफरीदी strike in the first over of the game. और अगर वो एक की जगह 2 विकेटें आ जाए तो उससे बेहतर क्या चीज हो सकती है। So solid performance. सलू मिर्जा as well against सलमान मिर्जा and राणा फहूम। हाँ, मगर सलमान मिर्जा की यार, I know his figures overall were 1 for 16. That's great. Those are great figures, but in the power play he only conceded 10 runs in 3 overs. I like the fact कि सलमान अली आगा gives him 3 power play overs. I feel like उसकी best utility वहीं पे है। बातें क्यों डिफरेंट होती हैं, मुझे मसला ये है ना, बातें क्यों डिफरेंट होती हैं। नहीं बन रहा था यहाँ पे नहीं गाना। हो रहा था, बहुत ज्यादा फोर्स था। मतलब सलमान मिर्जा को अगर एक जगह आके आप कह रहे हो कि हम उसे डेथ बॉलर भी देखते हैं तो फिर पावर प्ले में 3 ओवर ठीक है, जो कि सही होना चाहिए, लेकिन वो बातें ना करो यार। या फिर यू नो वॉक द Sense नहीं टॉक। बनती। पाकिस्तान की इस वाली टीम का मसला ये है कि द वर्ड्स नेवर मैच द एक्शंस। Yeah. एंड अगेन आप लोगों को लगेगा हम नेगेटिव हो रहे हैं, बट वी वांट टू काइंड ऑफ लुक टुवर्ड्स द फ्यूचर। सीरीज विन एक साइड पे यार, इट ओनली मैटर्स momentarily, even I've forgotten about it. अब क्या होगा? Yeah. Yeah. या ये करें, वो जैसा वो करता था, वो याद है वो दाढ़ी वाला बॉय की शादी हो गई है। He was all over social media. इसी तरह कुछ करता था ना मुबारक हो bro. या खैर, I think Salman Mirza was phenomenal once again. देखो, 3 for 14 in 4 overs and then 1 for 16 in 4 overs. This guy took 4 for 50 in 8 overs. मगर साथ वाली बात ठीक है ना, 6 ओवर तो 8 में से पावर प्ले में। ठीक है, तो फिर वो पावर प्ले बॉलर हुआ, हमें मत ये बताओ कि वो डेथ बॉलर है। ठीक है, करवाओ 3 उससे, हर रोज करवाओ 3। बिल्कुल, मुझे मसला नहीं है उससे, लेकिन बातें ये ना करो, मुझे उससे मसला है फिर। राणा जी फिर से, राणा जी ऑन हुए हैं भाई, वो भी ऑन हैट्रिक थे, सिर्फ शिनो नहीं, राणा जी भी ऑन हैट्रिक थे। सेकंड ओवर में 2 विकेटें ली, हाँ एंड में हल्का सा पिट गए, मगर 2 for 28। if Rana Fahum can give me 2 for 28 every day in a T20, I take my money. यार वो 1 for 28 दे दे, none for 28 दे दे, मैं ले लूं। 28 रन तक खाए ना, और कुछ विकेटें इधर उधर ले दे यार, he is doing his job and then some। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि राणा जी कम से कम 30 रन तो खा लेंगे। ठीक है, अच्छा खैर, ये तो पेसर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। फिर उसके बाद उस्मान तारिक का भी डेब्यू था। हाँ, इंटरनेशनल डेब्यू फॉर उस्मान तारिक। जो एक मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं चीज, फिर से सोशल मीडिया पे शिट स्टॉर्म था। सबसे पहले तो आप आईसीसी नहीं हो ना, आप लवबर हो जो आप डिसाइड करो क्या चेकिंग है क्या नहीं है। ही हैज बीन क्लियर्ड। दूसरी बात, ही हैज गॉट अ डिसजॉइंटेड एल्बो। अगर तो वो फिर से एक्शन रिपोर्ट होता है, फिर जाए वो। हाँ ठीक है ना, आईसीसी के लिए डिसाइड करना है कि डिसजॉइंटेड एल्बो को क्या करना है। उसकी अब बॉडी के अंदर एक लिमिटेशन है। इट्स नॉट चकिंग हिज एंटायर एक्शन में द बॉल इज डिलीवर्ड एट अ बेंड। ठीक है, वो इस तरह हल्के से बेंड पे डिलीवर होता है। दिस इज नॉट फॉर यू टू डिसाइड, दिस इज फॉर द आईसीसी टू डिसाइड। सब उसकी बॉलिंग देख रहे हैं। अगर कल को बैन होता है तो ठीक है, दे मेड देयर चॉइस। और फिर अगर वो एक्शन क्लियर करके आता है तो क्लियर करके आता है। मगर बाकी वी हैव सीन हाइपर एक्सटेंशन एज वेल, गिवन द ग्रीन सिग्नल, राइट? शोएब अख्तर, बुमराह, मुरली वाज आल्सो हाइपर एक्सटेंशन। मुरली पता नहीं क्या ही था, मुरली का कुछ था अजीब से, वो भी एक अनोमली थी। सो नाउ लीव इट टू द आईसीसी टू जज वेदर और नॉट उस्मान तारिक's anomalous elbow fits the bill or not. आई थिंक अच्छे टाइम पे खिला लिया इसे भाई। उसने विकेट बड़ी निकाली थी। he removed baby AB Devol Brevis, वो पुल के लिए जा रहा था, got too big on him. Yeah. And he took a wicket with the second ball in international cricket, Usman Tariq. Took a catch with his third ball.
हाँ, international बल्कि he had game. already featured in the game before taking a wicket. कैच ले लिया उस्मान तारिक ने, हालांकि कोई जबरदस्त फील्डर नहीं है, मगर कैच तो पकड़ लिया उस्मान तारिक ने उसने, catch ठीक है। पकड़ा, bro. सेकंड स्पेल में आया तो रीजा हेंड्रिक्स को निकाल दिया। 2 for 26 on international debut, on T20I debut. Was a really good performance, but trust me when I say this, it could have been better. It could have been better. बेहतर bowling कराता ही इससे। इधर उधर लाइन उसकी जो है काफी ना, width हाँ, दे रहा था सादी। नहीं। On different day, that width will be deposited. लाइन और लेंथ दोनों उसकी इधर उधर जा रही थी। Full बीच में। टॉसियां भी आई थी बीच में कुछ, जा रही ठीक है। थी। Despite that, he was really good. हाँ, उसके बावजूद he takes 2 for 26, full marks to him as well. I'm glad he got a game. Yeah. मेरे वैज जूनियर को तो आप लोगों ने नहीं खिलाया, मगर शुक्र है उस्मान तारिक को एक गेम दे उस्मान तारिक को मिल दिया। गई हालांकि game. उस्मान तारिक should have played 2 games and Abrar should have should played play 1. और उस्मान तारिक should have played all 3. Three. क्योंकि आपने ट्राई करनी थी चीजें। लेकिन पहले मैच में उसकी शादी एक दिन पहले हुई थी यार ब्रो। ये तो है। अब वो बेचारा, देखो पीसीबी की ऐसी हरकतें हैं ना, लास्ट मिनट स्क्वाड्स डिसाइड करते हैं, लोग अपनी शादियां तो आगे पीछे नहीं कर सकते। उसके साथ मैं थोड़ा सिंपैथाइज करता हूँ, या खुद हम अपनी छुट्टियां नहीं निकाल पा रहे होते क्योंकि चीजें हो जाती हैं। चलो, कोई निजाम ही नहीं है, अजीब निजाम है, संगीन माहौल है। अच्छा, तुम्हें एक बात करनी थी जो मैं बड़ा हेजिटेंट था, मगर तुम कहते कि नहीं ये पॉइंट डालो। साउथ अफ्रीका की रनिंग वाज वेरी पुअर। इट वाज वेरी पुअर इन द 30-20, नहीं भाग रहे थे। जो हम साहिबजादा फरहान का कह रहे थे पहले, और पाकिस्तान का कह रहे थे कि वो सिंगल को डबल को सिंगल कर रहे हैं, ट्रिपल को डबल कर रहे हैं और बीच में नहीं भाग रहे। साउथ अफ्रीका ने एग्जैक्टली वो किया 30-20 में। लाइव देखते हुए मैंने ऐसे बोला था, ये कह रहा था नहीं डालना। नहीं, मैंने फिर डाला ना, क्योंकि तुम्हारी भी ऑब्वियसली से तो है। क्या बात हुई है? ऑब्वियसली बोला मैंने। खैर, द ओनली पुअर बॉलर फॉर पाकिस्तान इन दिस 30-20 वाज मोहम्मद नवाज। बॉपिट है, बहुत कुट खाई है नवाज ने इस मैच में। क्या 1 for 38 in 3 overs? That was bad. उसके अलावा एवरीवन वाज गुड। उस्मान तारिक, राणा फहूम, शाहीन और अपना सल्लू मिर्जा। और बिफोर वी मूव ऑन टू बाबर आजम, मैं बोल सकता हूँ कुछ अगर आपकी इजाजत हो तो? हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ, बाबर आजम पे आ जाते हैं हम। नहीं, बाबर आजम से आने से पहले लेट्स जस्ट, नहीं है ना इजाजत, बोला था मैंने। तुमने पहले ये मुझे ओवररूल किया था कि बाबर पे आने से पहले बॉलर्स की बात करो मैं यार। कह रहा हूं कि जस्ट बिफोर वी गेट टू हिम, लेट्स कैप ऑफ साउथ अफ्रीका ओवर हियर। देयर वर 2 परफॉर्मर्स, राइट? आपने मुझे बोल दिया, मेरी भी ऑब्वियसली से है, ठीक है। माइट किया मैंने ये करनी तुमने बाबर आजम की बात नहीं, करनी। करो। अच्छा, ठीक है। वंस अगेन ग्रेट परफॉर्मेंसेस विद द बॉल बाय कॉर्बिन बॉश एंड जॉर्ज लिंडा। ये वही दो प्लेयर है जो पाकिस्तान को हमेशा लड़ते हैं। बॉश ने तो पीएसएल में भी बैन खाया हुआ है। ही इज नॉट पर्टिकुलरली लाइक्ड इन पाकिस्तान, बट आई रियली लाइक हिम एज अ क्रिकेटर। ही इज अ गुड क्रिकेटर। वही वाली बात है। T20s का बड़ा अच्छा एसेट है। Yeah, lots of pace, cranks it up beyond 145 and hard lengths. Again, 2 for 24 for him in 4 overs. और जॉर्ज लिंडा फिर वो बाबर को स्पेल कराया था ना, बीच में रन्स आए ही नहीं। बाबर यार शुरू में स्टार्ट तेज था, फिर लिंडा के खिलाफ रन्स आए ही नहीं, सवाए उसके वो जो एरियल स्वीप मारी थी। 4-5 डॉट्स थे हाँ, काफी ज्यादा डॉट्स थे। I mean, George Linda ends with 1 for 20 in 4 overs. Honestly, Babar wasn't helped by साहिबजादा फरहान during that phase. वो खुद अपनी डॉट्स पे डॉट्स खेल रहा था। ये भी बात ठीक है। रन फ्लो उधर रुक गया था बिल्कुल। बट खैर, स्लो लेफ्ट आर्मर और पाकिस्तान को खेल रहा हो, वो तो चलना ही चलना है। चलना है। वो तो हमने पहले बोल दिया था, बैटिंग हो या बॉलिंग हो। हाँ, जॉर्ज लिंडा ओनली कंसीडर्ड। महाराज लिंडा। ओ, हैदर अली, सिमरनजीत, अपना सिम्मो। मैं बैटिंग की बात कर रहा हूं। शकील भाई, अच्छा हाँ, बैटिंग वाली भी ठीक है बात। But yeah, none for 20 in 4 overs, very economical, couldn't strike. But I feel like George Linda is a first team player for South Africa. T20s में तो yes. T20 is a first team player. He had a stellar SA20 as well. He's really evolved his game. मारता भी है और bowling बहुत reliable है, very accurate. और Corbin Bosch भी, I feel like he needs to be in the squad. He will be. तुमने बोला था ना कि you take him ahead of Mulder. Yeah. I would too. In T20 I wouldn't play him ahead of Janssen in the first team. Yeah, but option चाहिए मुझे Bosch. Janssen, Rabada and Corbin Bosch is your front three. Son of Tertius. Unless कोटजिया ना यार, अगर कोटजिया नहीं आता, आपको बैटिंग भी दे रहे थोड़ी बहुत। मैं वही कह रहा हूँ ना, लेकिन कोटजिया भी मार लेता है। कोटजिया भी check लेता है। वो तो यानसन भी मार लेता है। अगर कोटजिया नहीं है तो फिर बॉश खेलता है। यार होना तो चाहिए। You need to have him as an option. I feel like he's shown us enough. And पाकिस्तान का अगर खेल रही हो साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप में, तो उसमें तो वो स्टार्ट करना चाहिए। सही है, पाकिस्तान से नहीं खेला जाता। But I feel like 2 biggest takeaways for South Africa in this series were George Linda and Corbin Bosch. Again, एक 50 आई सिर्फ उनकी, वो भी flawed 50, रीजा की 60 और 40, but overall नहीं, they weren't good with the bat. Not at all. Third positive Lizard है, क्योंकि वो I guess Berger और Bartman से तो बेहतर था। Berger wasn't that good. Yeah, Berger has kind of dropped off a bit, right? Yeah. वो खैर hostile territory में था, रावलपिंडी में। Berger and Pindi, that's tough work, man. That is. Yeah. अच्छा खैर, आ जाए बाबा पे। आ जाओ बाबा। हाँ, इजाजत है सर। हाँ जी, बात करें प्लीज। Finally,
You know, the king stood tall at the Gazaffers, hometown hero, in front of a packed home crowd. अवाम lost their shit, deservedly so. बड़ा वेट किया यार लोगों ने, बड़ी तरसी भी थी अवाम. वो जो मेरे वो you know about the Masroor sisters, right? Who watch this podcast as well. हर मैच पे जाती हैं. Love those girls. बहुत ही जबरदस्त किस्म की फैंस हो आप. कभी कोई फजूल बात भी नहीं सुनी उनसे. यार वो कह रही थी कि we're so jealous of the Lahore crowd, and I get it. हर मैच पे क्योंकि बाबर आया था मैदान में जमालो. ये इसने मैच पे करना तो मौका नहीं मिला. हम जो देखने गए थे 1 रन बना के आउट हो गए थे. 50 कर ली थी उसने. बड़े एक्साइटेड गए. अभी सेटल ही नहीं हुआ. हमने कहा ओ यार सादी वीडियो बना 50 कर लिए. महून इधर खुश बैठी हुई है. हम ये 50 हो गया. दस्ती आउट. वो व्लॉग 12 मिनट का. ठीक है 12 मिनट ज्यादा है उस व्लॉग. एक सेशन देख के चने शने खा के आगे थे. कीमा और चने खा के आगे थे. कीमा बहुत नेक्स्ट लेवल था भाई पिंडी स्टेडियम का. और वो सेटिंग भी शानदार थी. वो महून को अल्लाह मियां लंबी जिंदगी दे. इसको हमारे साथ दोस्त रखे ताकि हम भी और जिंदगी इस तरह के और एक्सपीरियंसेस एंजॉय करें. ठीक है. बट एनीवे यार वाओ. I mean, it was a catch-up knock. ठीक है. शुरू में थोड़ा तेज था. I think he was 17 of 12. Then at one point he was like run a ball 23. But then he gets to his 15-36 balls. I feel Varun वाली बात है. Remember, like, of course he plays a catch-up knock and anchors. But in a chase of 140, that's fine. It's okay. और कुछ चाहिए कोई मसला नहीं. 36 ball 50 is fine. मुझे बल्कि on the regular भी बाबर की 36 ball 50 दे दो मैं ले लूंगा as long as after that he accelerates like crazy. जिस तरह यूजुअली करता था. फिर अगली 50 20 बॉलों में करे. समझ रहे हो. अच्छा. हाँ ताकि 56 बॉल्स में 100 पे पहुंचे ना. थोड़ा ज्यादा मांग लिए. अच्छा. बट यार लवली शॉट्स ऑन डिस्प्ले. स्टार्ट किया पुल शॉट के साथ. देन ही कट द बॉल सो वेल. बार ठीक है. एरियल कट, ग्राउंडेड कट. एक उसका ग्राउंडेड कट था जिसपे तुम छूट गए थे. हाँ तुमने कहा था कि ये बेस्ट शॉट है गेम की. एजाज की फेवरेट शॉट पता है कौन सी थी? जो उसने मिड ऑन के ऊपर से चिप की है. I think बॉश को मारी थी उसने. वो तो बाबर करता है. मेरी फेवरेट शॉट्स तो उसकी हमेशा कवर ड्राइव्स ही रहेंगी. They were a couple of those as well. So pull shot, cut shots, cover drives. लेकिन फेवरेट शॉट मेरी उसकी वो पता नहीं कौन सी स्वीप थी. बस स्वीप यार वो पता है it clearly looked like he doesn't play this shot a lot क्योंकि वो conventional slog sweep नहीं है. I'm just happy कि he's trying ना. बिल्कुल. अब तो इस पे आ गया वो मैं. या कोशिश की है उसने. मुझे पसंद आई ये बात. सलमान अली आगा ने हाईलाइट की है बात कि बाबर आजम doesn't really play the sweep shot and he's tried over here. He got 2 boundaries of aerial sweeps. I'm not going to call them slog sweeps. पहली वाली तो ठीक कनेक्ट हुई थी. दूसरी वाली थोड़ी अजीब सी थी. यार दोनों ही थोड़ी नहीं पहली वाली फिर कनेक्ट हो गई थी ब्रो. पहली वाली में ये था कि वो फील्डर पीछे था नहीं तो वो एक तरह से सेफ शॉट थी. हाँ तो यही होता है. दैट इज द सेफ शॉट. बट एटलीस्ट लोग वरुण ने ये बात की. दूसरी वाली में आगे था फील्डर वो उसके ऊपर से टप गई थी. हमें पता है कि बाबर आजम वर्सेस पेस इज स्टिल वेरी गुड. ठीक है. ही इज स्टिल क्लास. वर्सेस स्पिन वो बहुत देर से फंसता आ रहा है. जब आउट होता भी नहीं है ना तब वो फंस जाता है. रन्स नहीं बना पाता. स्ट्राइक भी रोटेट करने से स्ट्रगल करता है. सो ही नीड्स रिलीज शॉट्स वर्सेस स्पिन. एंड वरुण ने कहा था ये कि इफ ही कैन समहाउ स्पैम द स्लॉग स्वीप और व्हाटएवर वर्सेस स्पिन then maybe that's a way out for him. And I hope that this is the start of something special. He also ran really well. बहुत भागा. पागलों की तरह भागा. सलमान बेसिकली ये भगा रहा था सलमान अली आगा को. वो ऑलरेडी भाग चुका था जब सलमान अली आगा ने रन कंप्लीट किया होता था. तो वो जो दुखियां आई है ना सल्लू की फोकस लग. हाँ लेजर फोकस. यार तुमने देखा था उसकी शक्ल पे क्या नूर आया हुआ था बाद में. जैसे हाँ वो तो हम साथ ही बैठ के देख रहे. इट वाज फनी. साद एंड आई वर वाचिंग चेल्सी वर्सेस टॉटनहम. उसकी आवाज ऑन की हुई थी. टीवी के ऊपर बाबर आजम का इंटरव्यू चल रहा था जो हमने सुना नहीं. बट यार हिज फेस लुक्ड completely different from what we've seen in so long. जो सारा प्रेशर होता है ना जो कंधों पे चढ़ा होता है वो लाइट फील करता है. हाँ I mean look he is the leading run scorer with most 50 plus scores but मसला ये कि evolution required है. Babar Azam needs to get better. इसमें कोई दो राय नहीं है. And hopefully this is the start of his rejuvenation because this was a good knock. And honestly अगर उसे खिलाना है T20s में तो ओपनर खिलाओ. देखो ये 68 और 47 था ना फर्स्ट ड्रॉप पे. ओपन करे अगर तो उसके ज्यादा लाइकलीहुड है कि बेहतर खेले. 75 हो जाए क्योंकि पावर प्ले उसको ज्यादा मिल रहा है. पेस बॉलिंग उसको ज्यादा मिल रही है. सो आई रियली फील ही शुड ओपन. बट आई एम जस्ट ग्लैड कि वो जो मेंटल प्रेशर था ना सारा कुछ हद तक उतरा होगा. उसकी शक्ल से लग रहा था उतरा हुआ. ठीक है. और फिर सेलिब्रेशन से लग रहा था ब्रो. सेलिब्रेशन से लग रहा था यार. एंड एवरीवन इज हैप्पी व्हेन बाबर आजम स्कोर रन्स. बल्कि ये कॉम्बो लग गया यार. शाहीन शाह अफरीदी टेक्स फर्स्ट ओवर विकेट्स एंड टेक्स अ 3 for. बाबर आजम स्कोर्स 68 और 47. माय टाइम मशीन वर्क्स. शाहीन एफसी एंड बाबर एफसी बोथ आर हैप्पी. मतलब मुझे माहिन यार तुम भी याद कराओ मुझे. When was the last time both Babar and Shaheen performed in the same T20 आए? मुझे नहीं याद आ रहा. मुझे legitimately नहीं याद आ रहा.
23 में शायद 2023 में कभी ना कभी किया होगा, तब इतने भी बुरे हालात नहीं थे वैसे बुरे हालात, काफी बुरे हालात थे। क्या मैं याद कर रहा हूँ, बहुत बैड सीन था। 21 में किया होगा, 22 में किया होगा। 22 में कब किया है? सेमीफाइनल न्यूजीलैंड, शाहीन परफॉर्म विद द बॉल, बाबर स्कोर्ड 50। आप लोग बताओ कमेंट्स में, इज दिस इन फैक्ट दैट लास्ट टाइम दैट बोथ ऑफ देम परफॉर्म्ड? उसकी 50 आई होनी चाहिए और शाहीन की अगर 3 विकेट नहीं तो अच्छी इकॉनमी होनी चाहिए। ये मुझे बताओ जरा। पावर प्ले विकेट, हाँ पावर प्ले विकेट तो एक तो होनी चाहिए। I mean, it was so refreshing, so heartwarming. I had forgotten what it feels like. Yeah. शुक्र है आ ही गया। So yeah, कितने नंबर दोगे तुम 68 और 47 सिर्फ उस नॉक को? सिर्फ इस नॉक को 8. I'd also give it an 8. ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा स्लो था, फंसा है बीच में, but he got out of it and he लोग कहेंगे गेम फिनिश नहीं की, यार गेम फिनिश कर दी थी, गेम मुक गई थी। आपको डर लग रहा था, मैच मुक चुका था। मैच तो मुक चुका था यार। वो अलग बात है कि 4 विकेट विन with an over to spare was kind of, I don't know, not too clinical. अच्छा खैर, we need to move on. Yeah. Player ratings करनी है हमने। प्लेयर रेटिंग्स दस्ती करनी है, क्योंकि आधों से ज्यादा की तो बात हो चुकी है, जिनकी नहीं हुई उनकी कर लेंगे। I think साइम अयूब की बात कर ली। बातें I think सारों की हो गई। साइम अयूब first T20 में 2 for 31 and 37 of 28 with a bat. Bad 37 of 28 should have been dismissed for his duck. Second T20 में 71 not out of 38 balls, did not get to bowl. And third T20 में duck. 6 ball duck. And 5 runs in 1 over. So पहले मैच में बॉलिंग अच्छी है, दूसरे मैच में बैटिंग अच्छी है, and there are 2 bad batting performances and 1 NA bowling performance, 1 over 5 runs। तो क्या कहें, 5 पास कर देते हैं, बिल्कुल हाफ मार्क पे 5 दे दो, मेक सेंस। ठीक है, सयाम अयूब, यू कैन बी सो मच बेटर देन दिस, फिट हो आके फर्स्ट ड्रॉप पे खिला दो प्लीज। Saibzada Farhan 24 of 19 in the first one, Yeah. 28 of 23 in the second one, and 19 of 18 in the third one. I'm not happy. Does not get a pass. No, it does not. I mean, वही वाली बात है ना, smash, block और get beaten with Saibzada Farhan। कीपिंग पे थोड़े मार्क्स देना चाहोगे? नहीं, क्यों? गलती नहीं की, एक गलती की वैसे, स्टंपिंग मिस की। मैं कीपिंग पे मार्क्स तो नहीं दे रहा ना, मार्क्स तो नहीं मिल सकते। या तो कोई होता टफ चांस लिया होता। रनिंग बिटवीन विकेट्स भी गंदी थी। बेराम ने बीच में बोला था गुड टेक। I was like, यार this is a take, not a good take. यार तो हर टेक पे आप नर्वस हुए होते हो ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि सीधे हाथों में आ रही है। whilst he had a decent day behind the stumps for half the game, I'm still nervous going forward. It's still a scary prospect. Doesn't get the passing mark. 3 से ज्यादा नहीं मिल रहा यार। 24 of 19 bad, 28 of 23 bad, 19 of 18 worst। और यही एक ही थीम है, या तो बड़ी शॉटें हैं या डॉटियां। Deandra Doughton ain't got nothing on him. बाबर आजम बाबा अज़ाम कह लो ना। 0 of 2 in the first one. I spliced the ball, गंदा, gets a 0. Very bad shot. 11 not out of 80. एक शुरू में कवर ड्राइव मारी, पहले बॉल पे चौका, उसके बाद भाई रन ही नहीं आ रहे थे, और फिर फंस गया था। 68 of 47. So he actually gets dismissed twice in 3 innings and he scores नहीं, बाकी दोनों नॉक्स काफी गंदे हैं, मगर 8 दिया था ना, इसलिए मैंने तुमसे पूछा था कि तुम 68 और 47 को 8 दे रहे हो, बाकी दोनों तो यार 0। एक NA कर दो। 11 unbeaten, 11 of 18 is NA. He drops catches though. 5. Yeah, he does drop catches, ये है। Catch. यार तीसरे तो- T20I में कोई ड्रॉप्ड कैच था? Not as far as I remember. मुझे अब याद नहीं आ रहा, Not as बिल्कुल far मेरे as I ज़हनो remember. गुमान से निकल गई ये चीज। नहीं था Not शायद। as far as Yeah, I I don't remember. think so. 5 बाबर 5 ही बनता है। 6 में दे देता अगर वो कैच ना छोड़ा होता। बट और मिसफील्ड्स भी थी बाबर की, मुझे याद आ एक गई। मिसफील्ड मुझे एक आधी मुझे याद है, 2 थी शायद ओवरऑल। अगेन वी आर बीइंग वेरी nitpicky, but ultimately it is still only one good knock. It's in isolation. अभी one off ही है। We need more evidence कि whether it is repeatable or not. सलमान अली आगा। So हमने साइम और बाबर को दोनों को 5 दिए। इतना ही बन रहे। हाँ, इतने ही बन रहे हैं। एक अच्छी बैटिंग इनिंग्स है। सलमान अली आगा की परफॉर्मेंसेस पे आने से पहले तो मैं लोगों को बताता जाऊं कि ठीक है, कप्तानी फिर भी सही थी, बट हिज बैटिंग स्पॉट एंड रोल इज समथिंग आई डोंट अंडरस्टैंड। क्यों आ रहा है वो 4 पे? यार तुम मुझे पहले उसके पिछले 19 इनिंग्स के बताओ ना क्या स्टैट्स। सिंस द स्टार्ट ऑफ दैट T20I सीरीज इन बांग्लादेश, क्योंकि उससे पहले चल रहा था सलमान अली आगा T20 से भी, 19 इनिंग्स, 288 रन्स, 298 बॉल्स, 150। हॉरिबले, एल हॉरिबले, बहुत ही बुरा सीन है। ही इज ऑन थिनर आइस देन लाइक सेलोफेन पेपर। ठीक है, गिर ही जाए बंदा इतनी थिन पे उस चीज के ऊपर। आई एम नॉट सोल्ड ऑन हिज प्लेस इन द साइड एज अ बैटर।
एक तो उसका रोल ही मुझे समझ नहीं आता क्या है रोल कोई इज ही नंबर 4 बैटर व्हाई इज ही बैटिंग अहेड ऑफ द लाइक्स ऑफ उस्मान खान एंड हसन नवाज वो दोनों से ऊपर आने चाहिए सलमान अली को तो मैं शाहीन से भी नीचे भेजूं हाँ सीरियस आई वुड हैव हिम एज अ फेल सेफ बैटर द बैटर आफ्टर द बैटर अगर तो ऊपर से 3 विकेट गिर गई हैं जल्दी तो फिर आ जाए हाँ क्राइसिस बैटर फिर बन सकता है वहां पे उसका रोल ठीक है बट यार ये एंड में इसने क्या 33 ऑफ 26 मारे मैं कोई इतना सोल्ड तो नहीं था बिल्कुल भी नहीं वो एक गंदा सा जलील फील्डिंग वाला चौका था याद है क्या जहरीली फील्डिंग निदम आयर शाउट आउट टू यू I don't know, man. Like 288 runs and 298 balls across 19 innings is a massive sample size and it's piss poor. It's shite. It's pathetic. 2 of 7 in the first T20, yeah? 2 of 7. 2 of 7 is Salman Ali coded by now? 1 over 15 runs conceded. उसमें भी पिटाई है. Second T20 में कुछ भी नहीं किया. Yeah. और third T20 में 33 of 26. कप्तानी फिर चलो थोड़ी ठीक थी. As in, I can't remember apart from the backward point thing, वो जो backward point में fielder नहीं. Fine leg वाले तो सारे कैप्टन वो हरकत करते हैं. Fine leg वाले सारे करते हैं उस पे उसको क्या करूं backward point वाली एक गलती बहुत छोटी है. और क्या कुछ कप्तानी पे NA कर दो. और क्या अच्छा कुछ क्या किया. अच्छा चलो कप्तानी पे यार 3 overs दिए दोनों दफा सलमान मिर्जा को. राणा फहूम को अच्छा इस्तेमाल किया. वो अगर अच्छी बॉलिंग ना कर रहा होता तो मैं देखता कि उसको 3 ओवर दे रहा है या नहीं. ये भी है. 2 एक नंबर आखिरी इनिंग्स पे चलो दे दिया 1.5 मैं 2 दे दूं 1.5 I'll be a bit generous नंबर अगर आखिरी इनिंग्स पे दिया है तो 0.5 कैप्टनसी का यार ये बच गया है यहाँ पे सीरीज जो जीत सीरीज अगर हार के होता ये गया था पक्का गया था शाहीन को बना दे T20 कैप्टन अभी भी मैं समझता हूँ ट्राई सीरीज के अंदर भी जा सकता है अगेन if he is a liability in your team, if he is a passenger, how does he make it to the T20 World Cup? As a player ही जब आप नहीं पहुंच रहे तो फिर कितना आप और चांस दो? मैं खुद willing था by the way, साद और मैं दोनों willing थे. हमें जब बना था T20 कैप्टन हमने कहा था he's not an automatic pick, but because he's exceeded or superseded expectations in the other two formats, इसको दे दो चांस. और he wasn't too bad with Islamabad United. Yeah, but again I'm not sold at all. मुझे कोई अगर बस इसका रोल समझा देना कि इसकी नौकरी क्या है बैटिंग के साथ इस टीम में मैं फिर आगे कुछ negotiate कर सकता हूँ but नहीं 2 and Saad gave him 1.5. Usman Khan 12 of 12 in the first T20 and 6 not out of 7 in the third T20 बैटिंग तो आई नहीं उसकी yeah, बैटिंग पहले T20 में काफी पुअर था लेकिन कीपिंग अच्छी थी कीपिंग ठीक थी कीपिंग 5 जस्ट ऑन द कीपिंग यार एनए दो इससे क्या एनए दे दो चलो क्या रेट करें जो नंबर बनते हैं कीपिंग में बनते हैं ही वाज मच बेटर बिहाइंड द स्टंप्स देन आई हैव सीन हिम इन द पास्ट वो स्टंपिंग और वो एक्रोबैटिक रन आउट he was really good in the field as well oh हाँ यार how can really we forget this he was going mad in the field यार पागल हो गया था एनए दे दो यार मैं इसको क्या रेट करूं he was really good though हाँ फील्डिंग पे तो नहीं रेट कर फील्डिंग पे नहीं यार हालांकि शानदार फील्डिंग थी जब साहिब ज्यादा कीपिंग कर रहा था बहुत पागल हुआ था लाइव वायर इन द फील्ड एंड ही इज लुक फिटेड टू फिट है बट ये नहीं बनता है क्योंकि ज्यादा मौका ही नहीं मिला या Hassan Nawaz 3 of 4 in the first one 5 of 8 in the third or did not bat in the second the Nozlet has been for a while अब उस बेचारे के कॉन्फिडेंस को भी ऐसी आपने फक कर दी है मिड एशिया कप यू ड्रॉप्ड हिम नाउ ही इज कम बैक चलो फेल हुए दोनों इनिंग्स में यहाँ पे उसको डिफेंड नहीं कर सकते दूंगा तो मैं 0 ही से और कुछ कर नहीं सकते बट दे हैवंट लाइक वही सलमान अली फिर कैप्टनसी का फेलियर है वो मो हारिस और हसन नवाज एक साइम अयूब भी कुछ बचा रहा है उसको स्टेटमेंट उस स्टेटमेंट के अंदर तो सिर्फ हुई कभी कभार बाकी मैं बता रहा हूँ आपको अगर कल को अब्दुल समद खेला तो हसन नवाज की जगह ही खेलेगा ये करेंगे ये इनकी यही सोच है Mohammad Nawaz. Yeah, Mohammad Nawaz. 3 for 26 and 36 of 20 in the first one. That's amazing stuff, by the way. That's a 10 on 10 performance, right? 0 for 19 and 4 in the second T20. Again, किस चीज पे डॉक करोगे points? नहीं कर सकते. And 1 for 38 and 3 in the last third game. one and 0 of 1. Yeah. Golden duck and 1 for 38 and 3 जितनी अच्छी first game थी उतनी बुरी last हाँ, exactly. Polar opposites. पहली मैच में तो यार उसको 10 मिलते हैं दूसरे मैच में भी कोई नंबर नहीं काट रहा ही टुक ए फिनोमिनल कैच इन द थर्ड T20 याद है तुम्हें जबरदस्त कैच पकड़ा ही इज अ रियली रिलायबल फील्डर बाय द वे स्पेशली इन द डीप एज वेल गेट्स अ पासिंग ग्रेड एक बुरे मैच पे तो नहीं मैं 7.5 वो 2.5 उसके आखिरी मैच पे कट रहे हैं बाकी 10 मार रहा था ही इज बीन पाकिस्तान्स मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर इन द हैसन एरा Him and Rana Fahum really have kind of cracked it, man. Hopefully, long may it continue. Rana ji पे आ जाते हैं फिर. Rana ji तो यार फिर did not bowl in the first one, which was surprising. और एक रन बनाया था. तुम्हें ये तकलीफ हुई थी? तुमने कहा था एक ओवर तो देना चाहिए था बेशक. वो 7th ओवर जो सलमान अली आगा करवाने आया था ना, I thought कि वो राणा जी को देना चाहिए. खैर did not bowl and then 1 of 3 bad game. Bad game with a bat. हाँ.
4 for 23 and 3.2 in the second one. Best figures for him in his career in T20 eyes. 2 for 28 and 4 and 4 not out of 2 in the third one. 8? 8.5. नहीं 9 bro. 8. 9. पहले वाले में तो bowling ही नहीं ट्राई की ना. हाँ. और He's more of a bowling मगर मैं all-rounder उसके as well. 2 मार्क एक बैटिंग परफॉर्मेंस पे काटता हूँ. एक बैटिंग परफॉर्मेंस. हाँ तो ठीक है 2 कटते हैं. नहीं 2 नहीं कटते यार. तुम 8.5 दे तो मैं 8 देता हूँ. 8.5. बट 8 तो ले गए और राणा जी यार देखो कोई रिकॉर्डिंग हिज बेस्ट फिगर्स इन T20 जो भी कह लो आप, जो भी कह लो, व्हाटएवर आर्गुमेंट्स यू हैव, कुछ लोग पॉलिटिकल हो जाते हैं, बट भाई ही इज अर्नड हिज स्पॉट एंड ही इज जस्टिफाइंग हिज स्पॉट डे इन डे आउट. राणा फॉर whom might have just hit his T20 peak. Hopefully. Yeah. Sheeno 1 for 45 and 4 in the first one. Poor. बहुत कुट पड़ी है यार. ठीक ठाक कुट पड़ी है. Second T20 तो वो खेला ही नहीं. और third T20 में he was really good. 3 for 26 and 4. So one good in game, one bad game. 5. वही ना, एक में 0 दे रहे हैं अगर, और एक में 10 मिलते हैं. 3 for 26 and 4 पे 10 तो 5 बनता है. ठीक है, शीनो सही जा रहा है यार. आई एम हैप्पी विद शाहीन शाफिदीज प्रोग्रेस एंड हीज एक तो कमिटमेंट इन द फील्ड भी बहुत अच्छी है उसकी. एशिया कप में बैटिंग में भी रन्स दिए. ही इज पिचिंग इन हियर एंड देयर और बॉलिंग के साथ अच्छा कर रहा है. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. ही इज इंप्रेस्ड माइक हैसन. लव दैट. Simo. 1 for 34 and 3 in the first one. 1 good death over, 2 terrible, horrible, horrendous power play overs. 2 for 28 and 4 in the second T20. Third T20 खेला नहीं. हाँ. यार इसको मैं 4 दे रहा हूं. मैं तुम्हें बताता हूं क्यों. क्योंकि कुट जो पड़ी है ना पहले T20 में, it's not because of good batting, it's because of poor bowling. लेकिन second T20 में he was really good. He was really good. He was unlucky. He should have ended with better figures than 2 for 28. और पहले वाले में डेथ ओवर तो बड़ा फिट कराया था. हाँ, डेथ ओवर फिट कराया था, मगर just because I'm so annoyed at the fact that he kept feeding the pads and hips और short bowling कराता short fine leg के साथ उस हरकत के ऊपर ना. क्योंकि देखो कप्तान जो भी हो ना, बॉलर मांग सकता है फील्डर. मैं 4.5 अगर यहाँ पे बॉलिंग करानी तो फाइन लेग पे फील्डर ले. मैं 4.5 दे रहा हूँ, सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि शाहीन को 5 दिए थे और ये शाहीन से बेहतर नहीं था. चलो मैं भी 4.5 देता हूँ, because I just don't want to give him a passing grade. I was that disappointed in that first game. एक अच्छा डेथ ओवर जरूर आया, मगर नहीं यार, नहीं मजा नहीं आया. अबरार अहमद फर्स्ट 2 T20s खेला था. 1 for 42 and 4 and 1 for 26 and 4. ये भी पासिंग रेट नहीं बन रहा है. इसको भी 4.5 ही मिलता है. 4 मिल रहा है इसको. तुम नसीम को, हाँ वैसे एक्चुअली नसीम does get more points than him. 4. नसीम bowls 7 overs right, 2 overs are bad. सही कह रहे हो तुम. तो अगर उसको हमने वैसे अगर इस तरह देखा तो 2 overs are bad, जरा ज्यादा हम क्रिटिकल नहीं हो गए. किस पे? नसीम को 4.5 दिया ना. ठीक है. 4 दो अबरार को. Very poor in the first game. 1 for 42 was horrendous, but 1 for 26 यार game was done. मैच काफी मुक चुका था. ये तो नहीं चाहिए ना अबरार से. हाँ. सलमान मिर्जा 3 for 14 and 4 and 1 for 16 and 4. I mean 10. 11. Did not play the first. नहीं actually 9. फील्डिंग पे मत मार्क्स काटूंगा. 9.5 0.5 कटते हैं फील्डिंग पे. वो मिस फील्ड और कैच ड्रॉप बहुत बुरे थे. वरना अगेन 4 for 30 in 8 overs is flat out insane. मतलब कमाल. And he's a proper option now for you. इतना तो कर गए वो proof. उस्मान तारिक last T20 खेला सिर्फ. 2 for 26 and 4. Took a good catch. Wore that bandana. 9 55. Emmy random number. Oh 55. ठीक है यार. मैं उसको 9 नंबर दूंगा. नहीं गलत क्या किया उसने. रुक के बॉलिंग कराने पे मैंने भी जरा वो लाइन इधर उधर स्प्रे हुई थी उसकी. यार हाँ इसलिए and he wasn't as good as Salman Mirza. Yes. 9 इसलिए क्योंकि I know he can be better than this. Width दे रहा था और फुल टॉस भी एक आधी कराई. इसलिए सिर्फ मार्क काट रहा हूँ. Being slightly strict with Usman Tariq क्योंकि पहला मैच था. But I'm glad that they finally tested him out. If I was Pakistan's team management, तो तीनों मैच खेलता है. ये और वसीम जूनियर तीनों मैच खेलते. अच्छा आ गए हम प्रीव्यू पे. खत्म हो गया है सब कुछ. रिव्यू का प्रीव्यू रह गया. वो दाऊद भी वहां पे बैठा हुआ सोने वाला है. आ जाओ भाई. फैसलाबाद से शुरू करते हैं मेरे लिहाज से. फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस अप्रैल 2008 फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम विल होस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट. यस सर. हाउ अबाउट दैट? सोल्ड आउट फर्स्ट ODI ऑलरेडी. माइन इधर आओ. आई वांट यू टू कम हियर एंड शेयर योर एक्सपीरियंस. आ जाओ. क्योंकि माहिन जो है ना चैंपियंस कप में नूरपुर लायंस से काम कर रही थी. फर्स्ट हैंड फैसलाबाद देख कर आई है. माहिन मुझे बताओ यार क्या सिस्टम है वहां पे. कितनी आवाम सबसे पहले तो बताओ ना अपनी तबीयत कैसी है. सबको सारे लोग पूछ रहे थे. रिकवरी हो गई है. सो व्हाट वाज फैसलाबाद लाइक? टेल अस अबाउट द क्राउड. टेल अस अबाउट द फैसिलिटीज. Okay, सबसे पहले we'll start with the distance between the hotel and the ground, which is
3 मिनट की ड्राइव, वाह, 2 से 3 मिनट की ड्राइव, एंड इट्स अ वेरी पीसफुल एरिया. वो उनका थोड़ा सबसे जो फैसलाबाद का अच्छा एरिया है, दैट इज दैट सरीना, पंजाब क्लब वगैरह, चिनाब क्लब वगैरह जो भी है. बोलने की क्या जरूरत है, फैसलाबाद का जो क्योंकि- सबसे अच्छा है. क्योंकि मैं फैसलाबाद घूम के आई थी इसलिए. अच्छा तो वो है. एंड उसके बाद वंस यू एंटर द ग्राउंड, वहाँ तो उसमें चैंपियंस कप में हाउसफुल था, तो आई एम श्योर कि थोड़ा इसमें माइक उसकी तरफ कर दो. हाँ. कि हाँ, चलो कि इसमें तो आई एम श्योर कि इट्स गोना बी रियली ग्रेट. हाँ, थोड़े से इनके सिक्योरिटी कंसर्न्स ये थे कि जब डोमेस्टिक हो रहा था, बट अगैन इंटरनेशनल में वो डिफरेंटली करेंगे, तो टाप के लोग ग्राउंड में बहुत आराम से आ जाते थे, क्योंकि वो उस तरह से कोई जाला नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था. जाले तो बिछेंगे अब यार. जाले अब तो लग जाएंगे. स्पाइडरमैन आ जाएगा भाई. टोनी रिजॉर्ट्स ही ना आ जाए. एंड वो आई थिंक दैट्स द क्राउड व्हिच इज मोस्ट क्रेजीएस्ट अबाउट बाबर आजम. Wow. क्रेजी अबाउट बाबर Damn. आजम. भाई. It's It's gonna a be a crowd spectacle. के जो पागल है, वो posters and chants and everything. ये facilities on the other hand, if it rains तो there are no such facilities. वो तो I think पाकिस्तान में किसी ग्राउंड में भी नहीं है. जैसी बारिश होगी आप मैच नहीं करा सकते. बारिश नहीं हो रही है अभी. लेकिन हाँ, बारिश नहीं हो रही है. कल इधर तो हो रही है, just by the way. इधर Yes. बारिश शुरू. करा दो यार, बहुत स्मॉग है. वैसे स्मॉग वहाँ पे भी होगी. हाँ, smog भी होती है वहाँ फैसलाबाद पे. का भी AQI ऑफ ही होगा. वो कौन सा दूर है लाहौर से, साथ ही तो है. अच्छा, उसका जो जैसे कदाफी स्टेडियम के नीचे वो एक होती थी ना फूड स्ट्रीट पूरी, जो कि अब बंद कर दी हुई है. उधर भी पूरी ये फूड स्ट्रीट है. हाँ, तो बीच में 17 साल शादियां ही हो रही होंगी उस शादियां हो ground रही में. थी. हाँ हो रही थी, वाकई हो रही थी. हाँ, हाँ. हो रही थी. साथ में सिंदबाद है बच्चों वाला, हाँ, वो बेचारा शादी बंद चले हो हम जाए. यार फिर. जाओ. तो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट ग्राउंड, और उनका क्राउड बहुत लविंग है, बहुत लविंग क्राउड है. मजा आने वाला ये है. मजा आएगा. थैंक यू माहिन Thank you, Mahin. फॉर दैट वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, क्योंकि मैंने कहा हम क्या वक्त जाया करें, जो होकर आए वहाँ पे वही बता दे. तो अकॉर्डिंग टू माहिन जो नहीं हो गया, उसने बता दिया. नहीं सब. नहीं, मैं कहना चाह रहा था कि अकॉर्डिंग टू माहिन जो फैसलाबाद के जिंदा दिलाने मंचले हैं, बॉबी फैंस है, बॉब्जी द किंग के फैंस बॉब्जी द है. किंग के फैंस है. वैसे मैंने भी वीडियोस तो देखी थी, हाँ. वो प्रैक्टिस कर रहा था, वो लोग आए हुए थे यार. चलो भरेगा तो सही. भरेगा. हाँ, मजा आएगा. नाउ द पीसीबी Finally. शुड स्टार्ट टू इन्वेस्ट एज वेल इन Yeah. दिस ग्राउंड, क्योंकि आगे पीएसएल भी इसमें होगा. हाँ. ठीक है, they've already announced that. इधर और पेशावर में. बिल्कुल. एंड द गेम्स आर ऑन 4, 6, 8 कल है ना. हाँ. कल कल मैच है यार. 4th, 6th and 8th सैटरडे 8th. Yeah. तो लगा लो हिसाब यार. ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे. Yes, sir. ठीक है, उसके बाद मतलब फौरन ही श्रीलंका वाली सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, तो पता नहीं हमने किस तरह आपको शोज देने. और फिर एशेस भी शुरू हो रही है, ट्राई सीरीज भी शुरू हो रही है. माय गॉश. अच्छा, मैं जल्दी से पाकिस्तान हाँ, और तू लाइनअप शाइनअप्स पे आ यार. मैं साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का स्क्वाड बता देता हूं. पहले पाकिस्तान का स्क्वाड शीनोस कैप्टन फॉर द फर्स्ट टाइम इन शाहीन ओडीआई. शाह अफरीदी इज पाकिस्तान न्यू ओडीआई कैप्टन. अगर इस पे गुफ्तगू सुननी है, पीछे कोई पॉडकास्ट किया हुआ की है, है? आज नहीं कर रहे इस पे बात. ठीक है, वी विश हिम द बेस्ट ऑफ लक. मैं टैक्टिकली नजर रख रहा हूँ इसी कप्तानी के ऊपर, टैक्टिकली. अबरार अहमद, बाबर आजम, राणा जी. राणा जी वैसे ओडीआई में बनते हैं. राणा जी हैं हर जगह बनते हैं. ओडीआई में बनते हैं. राणा जी को टेस्ट 20 भी खेलनी चाहिए. ओडीआई में नहीं बनते. और बेहतर ऑप्शन नहीं है. मसला ये ऑलराउंडर की किल्लत है. अब्बास फैसल अकरम वो उसे सिलेक्ट ही नहीं कर रहे. हांगकांग सुपर सिक्सेस खिला लें उससे. हांगकांग चाइना सुपर सिक्सेस होए. सॉरी, या सुपर सिक्सेस भी नहीं है, हांगकांग सिक्सेस है उसका नाम बाय द वे. अच्छा, सही है. फैसल अकरम, ही इज द सूफी मैक रिप्लेसमेंट. फखर जमान, हारिस रऊफ, ठीक है. हसीब उल्ला इज इन. होप ही गेट्स अ गेम. वोंट. हसन नवाज, ही वोंट यार. हसन नवाज, हुसैन तलत, फाइनली हुसैन तलत अपने फॉर्मेट में, अच्छे वाले फॉर्मेट में पिक हो गया. मोहम्मद नवाज, ठीक है. रिज, आई मीन राइट नाउ कुछ मसले चल रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वाले, मगर चलो खेलेगा तो सही. वैस जूनियर, नहीं खेलेगा. इसको नहीं मिलनी गेम. नसीम शाह, साइम अयूब एंड सलमान अली आगा. वैसे यहाँ पे स्क्वाड में सलमान मिर्जा नहीं है, तो मे बी कैन वी होप अगेंस्ट होप दैट वैस जूनियर गेट्स द गेम इन द I'm ओडीआईज. not hoping anything. अच्छा, what are the odds that all three of Faisal, Akram, Hasibullah and Vaz Junior get a game? 5%. एक को शायद मिल जाएगी, फैसल अकरम को नहीं मिलेगी. फैसल अकरम तो नहीं खेल फैसल रहा. अकरम को शायद लास्ट गेम मिल जाए, जिस तरह उस्मान तारिक के साथ. अगर ये जीते हुए ना 2 ओडीआई, तो फिर शायद हमें देखने को मिल जाए. पहला ओडीआई तो शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ खेल रहे हैं. पक्का. लिखवा लो. पहले और 2 और अबरार. पहले 2 और ये 4 लोगों का बॉलिंग अटैक होगा इन द फर्स्ट 2 ओडीआईज. ये आज लिखवा लो. अच्छा, साउथ अफ्रीका के स्क्वाड पे आ जाते हैं. ब्रीट्सका इज देयर कैप्टन. ही इज डन सो वेल इन ओडीआई क्रिकेट. पागल हुआ है बॉय. ओटनील बार्टमन, ये ओडीआई में बेहतर आपको नजर आएगा बॉलिंग में. कॉर्बिन बॉश, खा जाएगा पाकिस्तान को. डेवॉल ब्रेविस, बेबी एबी.
फाइनली कुछ रन्स कर दो बेबी, अभी अब एक 50 टेस्ट में मारी थी, बस वही उसी के लोग को लेकर बैठे मैं आज तक। Nondre Berger. ठीक है, Quinton de Kock is back. बेस्ट प्लेयर इन दिस टीम, Yeah. ही इज। हाँ. ओडीआईज में तो लेजेंड है Tony DeZori. टोनी डिजोर्जी, मतलब अगर वो टेस्ट और T20s में इंप्रेशन मेक कर गया तो I think one day में अच्छा रहेगा. I can only expect a ton from him in this series. Yes, sir. Yeah. Donovan Ferreira. Dono, not the captain this time. Born Fortuin. Bjorn Fortuin. 14. Yeah. George Linda. खा जाएगा। ये तुम ही पढ़ो यार. Kaba Peter. Lundre Pretorius. Hopefully gets more game time. Sinethemba Kishele. यार ये तो फिर नाम है ना। I really hope he gets to play. I want to be raving about Sinethemba Kishele in one of these podcasts. अगर सही pronounce किया है। क्योंकि ODI सीरीज में आपको बड़े डेली मिलेंगे यार, हर गेम के बाद रिव्यू शो मिलेगा। Lizard Williams. ये No, Coach Zia, he was ruled out. Paka was ruled out. David Miller was ruled out. David Miller was the captain. He's ruled out as well. Yeah. Look, it's a weak South African team. Quinton de Kock is their best player because he's an ODI legend. So de Kock and Dezorzi will open? Yeah, de Kock Breeds का भी कर सकते हैं. Dezorzi at 3 because he's been doing. I think he's not opened in this entire tour. Tony Dezorzi. Breeds का नहीं कब किया open? Breeds का open करता है bro. ब्रीड्स का ओपन करता है। टोनी डिजोर्जी क्योंकि अब तक ओपन किया नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं करेगा। फर्स्ट ड्रॉप पे आएगा। फिर ब्रेविस आ जाएगा। ब्रेविस at 4 या लूनड्री प्रेटोरियस at 4 and ब्रेविस at 5। हाँ, and 6 पे फरेरा। 6 पे फरेरा नहीं खेले शायद। और कौन है? और है ही नहीं कोई। 7 पे लिंडा, 8 पे बॉश। हाँ, बॉश और लिंडा तो तीनों मैचेस खेल रहे हैं 7-8 पे। हाँ, 6 पे फिर डोनो ही आता है। 8 ये हो गए। लिजार्ड आ गया एक। लिजार्ड probably play. Berger and Lizard will play most games. बार्टमैन और किशेले में फिर करेंगे ये सीमर्स रोटेट करेंगे। all of these seamers will get 2 games each. I have no idea कि सिनेथेम्बा किशेले करता क्या है, but I'm assuming he's a seamer. तुम हैवी बोल। हाँ, मैंने मतलब literally assumption मार दी इधर। मैं देख लेता हूँ। but नाम तो उसका फास्ट बोलरों वाला है यार, सिनेथेम्बा किशेले। वाह, देखते हैं अभी क्या करता है ब्रो ने बैट पकड़ा हुआ है। ना करो, इमेज आई थी ना क्रिकेट वो जो आती है उसमें बैट पकड़ा अच्छा खोल रहा है यार। मैं तो चाहता हूँ कि काबा पीटर को भी एक मिल जाए मैच। तुम बस ये नाम बोलना चाहते हो और कुछ नहीं करना। मैं वो ढूंढता हूँ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कि मैं नाम बोल सकूं। यार नहीं खुल रहा नहीं है यार। सिनेथेम्बा का कोई आइडिया नहीं है हमें। सिनेथेम्बा आ गया टॉप ऑर्डर बैटर। ना करो। यस सर। ठीक है ब्रो 2 T20 आइस खेला हुआ है। बैटिंग कोई नहीं आई। खैर फिर लिजार्ड, अपना बर्गर और बार्टमन, सिर्फ 3 बॉलर हैं। सिर्फ 3 सीमर्स हैं इनके पास। That's a bit odd. So they won't be rotated then. क्योंकि Bjorn Fortuin is also a spinner. और Bosch भी तो है ना, चौथा Bosch है, मगर Bosch plays every game. Bjorn Fortuin might get a game. I don't know कि conditions कैसी हैं फैसलाबाद में। I think batting surfaces मिलेंगी आपको, but वो तो वक्त ही बताएगा। Can't say anything। 17 साल में वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं हुई। But this is a weaker South African team than the T20I series. ये पाकिस्तान को 3-0 जीतनी चाहिए सीरीज। जीतनी चाहिए। अभी प्रेडिक्शंस पे आएंगे। पाकिस्तान तो फर्स्ट टीम खिलाएगा ना। पाकिस्तान will open with Fakhar Zaman and Saim Ayoub and Babar at first drop and Rizwan at 4 and Salman Ali Agha at 5. Top 5 locked. Nawaz at 6. Nawaz at 6 ये करेंगे ये। नहीं हसन नवाज at 6, नवाज at 7। इसमें राणा फहम नहीं घुसता। और फिर शीनो at 8, 9 नसीम, हारिस रऊफ एंड अबरार। यही टीम होगी और पहले दोनों मैचेस में यही टीम होगी। और तीसरे में शायद ये फैसल अकरम को शायद गेम दे दें यार। इफ इट वर अप टू मी, फखर तीनों मैच ना खेलता, एक हसीब को मिलता, जरूर मिलता, या शायद 2 मिलते, मगर फखर क्योंकि ज्यादा खेल नहीं रहा अब, और उसकी मैं देखना चाहता हूँ फिटनेस होल्ड अप करती कि नहीं, तो चलो उसको 2 मैचेस दो। फैसल अकरम शुड प्ले अहेड ऑफ अबरार इन 1 or 2 of these games, but probably won't. वसीम जूनियर विल ओनली प्ले अगर पाकिस्तान मैचेस जीत रहा हो। अगर 2-0 हो गई हो सीरीज तो फिर आ जाएगा वैस जूनियर, हारिस रऊफ की जगह। एट दिस पॉइंट आई हैव गिवन अप होप कि उस बेचारे को गेम मिलेगी। एंड आई थिंक एक मैच में हुसैन तलत को भी ट्राई करना चाहिए हेड ऑफ सलमान अली आगा। हाँ, व्हाई नॉट। ठीक है, हसन नवाज की जगह नहीं, सलमान अली 5 पे बनता है हुसैन तलत, 6 पे नहीं बनता। लुक, स्ट्रॉन्ग टीम है पाकिस्तान की, ऑलमोस्ट फुल टीम है। मतलब तुम क्या चेंजेस करते? आई थिंक इट्स अ गुड स्क्वाड पाकिस्तान का। पाकिस्तान का बहुत अच्छा स्क्वाड है। मैं बस अब्बास अफरीदी को रखता राणा फहम की जगह। मैं थोड़ी और शायद एक्सपेरिमेंटेशन कर लेता। आई नो शाहीन तो ऑब्वियसली कैप्टन है, वो होना चाहिए था फर्स्ट टीम, और थोड़े से एक्सपेरिमेंटेशंस और हो सकते थे। आई थिंक फॉर मी आई वुड ओनली हैव अब्बास अफरीदी हेड ऑफ राणा फहम, मगर वो तो कभी करेंगे ही नहीं। ठीक है, मेरे लिए फहीम अशरफ बहुत अच्छा T20 प्लेयर है, ओडीआई में नहीं है।
हाँ नहीं आ रहा। Yeah. So yeah, स्कॉट तो बहुत अच्छा है ना, इसलिए वो कंपैरिजन में देखो साउथ अफ्रीका के तो बहुत ही बेहतर है, बहुत बेहतर है, पाउंड like- फॉर पाउंड, लेकिन हाँ। प्रेडिक्शंस पे फिर आ जाते हैं इसी बात पे। अच्छा, हारिस रऊफ की बहुत बड़ी सीरीज है ये, बिकॉज ही इज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम T20 एंड अगर ODIs में बुरा खेलता तो आई डोंट नो इफ ही विल मेंटेन हिज प्लेस। आई डोंट नो ब्रो। Yeah. हाईएस्ट रन स्कोरर कौन होगा बेराम? बाबर आजम। बाबर आजम। या तुम भी बस अब वाइब्स पे चल रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ बाबा आजम। हाईएस्ट विकेट टेकर? शाहीन। या आई मीन नवाज, मोहम्मद नवाज। चलो तुम नवाज कर लो, मैं शाहीन कर लेता हूँ। और फिर क्या रह गया पीछे? स्कोर लाइन प्रेडिक्शन नहीं, पहले प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर प्लेयर ऑफ ऑफ द द सीरीज। सीरीज बाबर प्लेयर ऑफ द आजम। सीरीज इस पे मैं नवाज चला, मैं बाबर आजम जा रहा हूँ। आई गो विद मोहम्मद नवाज। बाबर आजम। ठीक है, चलो तुम बाबर कर लो, मैं नवाज कर लूँ। और स्कोर लाइन 3-0 पाकिस्तान। Actually no, 2-1 they're gonna manage to lose a game somehow. कुछ ना कुछ करके एक मैच हारेगी बस। बॉश कोई मैच विनिंग हाँ, इनिंग्स खेलेगा, हाँ। 2-1 पाकिस्तान। बॉश और लिंडा एक मैच में खा जाएंगे। 2-1 पाकिस्तान sounds about right. Yeah. Yeah. बाकी यार, for those of you who are watching from फैसलाबाद, let us know what the experience is like. जाकर टीम को सपोर्ट करें, याशियां करें। We will be here for every ODI review और उसके बाद आपको बाकी भी चीजें बहुत मिलेंगी। कंटेंट बहुत चीजें हैं यार, थक गए हम आज। आप लोगों को बस वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक कर देना, जाए click सब्सक्राइब भी कर देना, प्रो स्पोर्ट्स लाइव, प्रो स्पोर्ट्स फुटबॉल को भी कर देना। और हमारी बूथियां पसंद आई तो स्पॉटिफाई, Amazon म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, iHeart रेडियो, पैंडोरा, पॉकेट कास्ट, पॉडबीन, कास्ट बॉक्स, पॉडकास्ट एडिक्ट और जहां हैं हम वहां पे जाके सुन सकते हैं। पोस्टर्स बाय कर लें, जानिए ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट बन जाए। वी विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन अल्लाह हाफिज। Boy, कैसा